ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار، انسان کے جگانے کو جب بیت گئیں صدیاں، شبیر نے فرمایا یہ کام ہے دن بھر کا۔ حضرت علامہ نے اپنے زمانے کے نوجوانوں پر نگاہ ڈالی تو ان کی آنکھوں میں ایک خوف دیکھا، ان کے دلوں میں موجود اس ڈر کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ایک شعر لکھا اور نوجوانوں کو ایک سبق پڑھایا۔ کہا کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبراؤ عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ لیکن شاید حضرت علامہ نے حسینی جوانوں کی یہ جھلک نہ دیکھی تھی کہ آج اس شاہراہ مقدس، شاہراہ جنت، شاہراہ نجف و کربلا پر جو حسینی جذبہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے، یقیناً حضرت علامہ دیکھتے تو نوجوانوں کی دو قسمیں بنا دیتے اور حسینی نوجوانوں کے بارے اپنی رائے ضرور مختلف رکھتے، کہ اس لیے کہ یہ جب رسم چلی ہے شب عاشور کے بعد، اب دیے چل کے جاتے ہیں ہواؤں کی طرف، اس لیے کہ اس دور کا جوان شاید اپنے مخالف اور اپنی مد مقابل طاقت سے ڈر جاتا ہو، اس خوف کو اپنی نگاہوں میں جگہ دیتا ہو، اپنے دل میں محسوس کرتا ہو اور بڑے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ناکامی کا شکار ہو جاتا ہو۔ لیکن آج یہ حسینی نوجوان اپنے بڑھتے قدم امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھائے اور اپنے دل و دماغ میں بس حسین کے نام کا نور اور اس شجاعت کو محسوس کرتے ہوئے آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں، بغیر کسی پرواہ کے کہ آگے ان کے مد مقابل کون ہے، اس لیے کہ جس کا سہارا حسین ہو اس کو کسی دوسرے کا خوف لاحق نہیں ہوتا۔ آج یہ دنیا پوچھنے پر مجبور ہے کون ہے کہ جس کے لیے ہر ایک اتنا جوش و جذبے اور مہر و محبت کے ساتھ بڑھا جا رہا ہے، جسے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں، جسے اپنی موت تک سے کوئی خوف نہیں آ رہا۔ تو آج یہ اس طرف کربلا جا کیوں رہے ہیں کہ جس کی جو قیمت انہیں ادا کرنا پڑے وہ ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ایک بے کفن کے کفن کا اعجاز دیکھیے، ہر شخص چاہتا ہے کفن کربلا کا ہو، یہ اپنی زندگی کا سودا کر کے آتے ہیں، یہ ہر قیمت ادا کر کے آتے ہیں اور بدلے میں انہیں چاہیے تو صرف حسین کا دیدار چاہیے اور چاہیے تو حسین علیہ السلام کی مقدس زیارت چاہیے، جس کے لیے آج یہ اس مقدس شاہراہ پر موجود ہیں اور اس کی ہر قیمت ادا کرتے ہوئے بڑھے جا رہے ہیں۔ آج امام حسین علیہ السلام کے یہ عاشق جوان ایک نئی صبح کے ساتھ، اس چڑھتے سورج کے ساتھ اس دن کے سفر کا آغاز کر چکے ہیں اور ان کی نگاہوں میں روضہ حسین بس رہا ہے کہ جو انہیں بس معمولی سفر کے بعد دکھائی دے گا اور اس گنبد طلا کے سامنے جا کر امام حسین علیہ السلام کو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہہ کر پکاریں گے اور اس حل من کی صدا کو لبیک یا حسین کے ذریعے جواب دیتے ہوئے امام علیہ السلام کی نصرت کا اعلان کریں گے، اپنے ان جذبات کی عکاسی کریں گے کہ یہاں موجود ہر شخص امام حسین علیہ السلام کا عاشق نظر آ رہا ہے۔ یقیناً آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں وہ مناظر کہ جو اس شاہراہ مقدس پر ہمیں اپنی نگاہوں سے دکھائی دے رہے ہیں۔ حاضر ٹیلی ویژن آپ کو دور بیٹھے کربلا دکھا رہا ہے اور یہاں پر تمام لوگوں کے جوش و جذبے دیدنی ہیں کہ نماز صبح کے بعد اب یہاں پر مواقب میں ناشتہ تقسیم کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو احباب ہے بہت ہی خوبصورت روحانی مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ کوئی قرآن کی تلاوت کرتا نظر آ رہا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کو سنتے ہوئے آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے، جگہ جگہ پر ذکر دعا اور ذکر اہل بیت علیہ السلام ہمارے سماعتوں میں پڑھ رہی ہے کہ یہاں پر ہر ایک انسان اپنی اپنی عبادت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سفر کو زیادہ سے زیادہ روحانی بنانے کی ہر ممکن کوشش کرتا نظر آ رہا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو اکیلے سفر کر رہے ہیں تو کچھ لوگ ہیں جو اپنے اوائل اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ جو یہاں پر ایک مرکزی نگاہ آ کے ٹھہر جاتی ہے وہ ان بچوں اور ان بے شیر نوجوانوں کے بارے میں ہم یہاں پر دیکھ کر ورطہ حیرت میں ہے کہ یقیناً کہ جن کے حوصلے کسی طور جوانوں سے کم نہیں ہیں، ایسے بچے کے جو ماؤں کے ساتھ ہیں، ایسے بچے کے جو اپنے
ماں باپ کے ساتھ یہاں پر انگلی پکڑ کر اپنے قدموں پر یہ سفر کرنا چاہتے ہیں. اگر نہیں چل پا رہے ہیں تو ان کو اسٹرالر وغیرہ پر سوار کر کے ان کے ماں باپ اس طریق اور اس شاہراہ پر بڑھتے نظر آ رہے ہیں. یہاں پر ہمارے ساتھ نوجوان بھی موجود ہیں, ہمارے ساتھ یہاں پر ادھیڑ عمر بھی موجود ہیں, ہمارے ساتھ بزرگ لوگ موجود ہیں. مرد و عورت کی کوئی قید نہیں ہے, تو ان کے جذبات اور احساسات بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, کہاں سے تشریف لائے؟ جی پاکستان خیرپور میرا سندھ سے. جی, سندھ سے تشریف لائے. آپ بتائیے گا پہلا سفر ہے یا پہلے بھی آ چکے؟ نہیں, میرا پہلا سفر ہے. اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یعنی پہلے کئی عرصہ آپ نے تمنا کی ہوگی, ان مناظر کو اسکرین پر دیکھا ہوگا, کیسا محسوس ہو رہا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر؟ بالکل بڑا سکون محسوس ہو رہا ہے کریم کربلا کی سرزمین پہ گھومتے ہوئے. ماشاء اللہ. رات بھر سفر کیا یا ابھی دن کا آغاز؟ رات کا بھی سفر کیا ہے, عصر کے فجر کے وقت تقریباً آرام کیا تھا, پھر ابھی شروع کر رہے ہیں. کوئی ابھی پریشانی تو نہیں ہے کہ آرام کہاں کروں گا, نیند کہاں آئے گی؟ نہیں, مولا کا شکر ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. انشاءاللہ مواقع موجود ہیں. جو لوگ نہیں آ پائے, جو لوگ اگلے برسوں میں شریک ہوں گے, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آنا چاہیے یا نہیں؟ ضرور آنا چاہیے. ایسی سرزمین پہ ایک مرتبہ تو کم سے کم ضرور آنا چاہیے دعا کے لیے. سارے مومنوں کے ساتھ جو اجتماعی دعا ہوگی ان کے لیے تو ضرور آنا چاہیے. جزاکم اللہ, سلامت رہیں. دیدار کے لیے ضرور آنا چاہیے. دعا میں انہیں بھی یاد رکھیے گا جو اس سفر کا حصہ ابھی تک نہیں بنا. سب کو یاد رکھیں گے, آپ بھی ہمیں دعاؤں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہاں سے تشریف لائے؟ سندھ سے. سندھ سے. آپ بھی ماشاء اللہ پہلا سفر ہے؟ پہلا سفر ہے. ماشاء اللہ. مشی کر کے کیسا لگ رہا ہے؟ ماشاء اللہ بہت اچھا لگ رہا ہے, دل کرائے ہر سال آئیں. ماشاء اللہ. انشاءاللہ اسی جذبے کے ساتھ انشاءاللہ اگلے برسوں میں بھی آپ آئیں گے اور اپنے گھر والوں اور دوسرے مومنین کے ساتھ. انشاءاللہ سب کو لے کے آئیں کیا گے. پیغام دینا چاہیں گے جو مومنین دیکھ رہے ہیں آپ کو؟ جو دیکھ رہے ہیں ان کو میں پیغام دینا چاہوں گا, کوشش کریں جتنا ہو سکے کہ اس کربلا کی سرزمین پہ آئیں. اتنا سکون ملے گا کہ آپ کو واپس جانے کا دل نہیں کرے گا آپ کو. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ان جذبوں کو سلامت رکھے, آپ کا سفر بامعرفت بنائے. دیکھ رہے ہیں مومنین یہاں پر موجود ہے. اصل میں ہم موجود ہیں یہاں پر 327 نمبر موقف کے پاس کے جو کاروان ہند کے نام سے معروف ہے, جہاں پر ہندوستانی ہمارے احباب ہیں کہ جنہوں نے یہاں پر انتظامیہ کا حق ادا کیا ہوا ہے, اور یہاں پر ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طور زائرین کو کوئی بھی ضرورت ہے تو وہ ان کی پوری ہوئے بغیر نہ رہے. ہمارے ساتھ ایک اور زوار موجود ہے کہ جن کو یہ سعادت ملی کہ اس شاہراہ پر موجود ہے, ان کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں آپ؟ شکر خدا. جی, کہاں سے تشریف لایا؟ میں کراچی سے ہوں. نوآں خان الحمدللہ مختلف گروپس کے ساتھ میں نے ایک نوآں خان شرکت کر رہا ہوں سفر مہینوں سے. چلے ضرور آپ سے نوآں بھی سنتے ہیں. پہلے یہ بتائیے گا پہلا سفر یا پہلے بھی آ چکے؟ پہلے بھی آ چکا الحمدللہ. چلے ماشاء اللہ. کیسا محسوس ہو رہا ہے اس سال پچھلے سالوں سے؟ کچھ فرق لگ رہا ہے آپ کو؟ ہر سال ایک الگ جذبہ, ایک الگ انسان جو ہے وہ ذوق و شوق کے ساتھ مولا حسین کی زیارت پہ آتا ہے. بلاخر یہ نصیب والے ہیں جو اس سفر حسینی کو, عشق حسینی کو طے کرتے ہیں, اور خدا سے دعا ہے کہ خدا ہر انسان کو, ہر عاشق بابا عبداللہ حسین کو اس سفر عشق سے نوازے انشاءاللہ. ایک سفر ایک بار کرتا ہے بندہ, پھر تھک جاتا ہے, بار بار ایک جگہ پہ جانے کا دل نہیں کرتا. تو اس سفر پر کیا جذبہ ہے کہ بار بار انسان, ہر سال انسان تمنا کرتا ہے؟ دیکھیں, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قربانی ہے اس کے اندر ایک ایسی جاذبیت خدا نے رکھی ہے کہ انسان کا دل ہمیشہ اس کھچاؤ کو احساس کرتا ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ انسان کو یہ محسوس ہو کہ یار میں ایک دفعہ ایک جگہ دیکھ لی ہے. ہر بار پورا سال انسان پلاننگ کرتا ہے کہ اربعین کب آئے گا اور انسان اس سفر کے لیے کوئی نہ کوئی زمینہ فراہم کرے. یہ توفیق ہے بابا عبداللہ حسین کی, اور یہ ان کی جو اتنی بڑی عظیم قربانی تھی اس کا نتیجہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس سفر اس سے نہ خستہ تو دور کی بات, ہر بار ایک الگ لذت لے کے جاتا ہے. تھکاوٹیں دور کرنے آتے ہیں سال بھر کی, زندگی بھر کی. آپ سے گزارش کریں گے کہ کچھ اپنے جذبات کی جو عکاسی کیجیے گا, کچھ ایسا کلام ہمیں سنائیے کہ جو ان سننے والوں تک پہنچے تو انہیں محسوس ہو کہ وہ حرارت کیا ہے جو اس شاہراہ پر محسوس ہو رہی ہے آپ کو. اس سفر عشق کے اندر ویسے تو ہم ظاہر سی بات ہے اپنی زبان میں کلام پڑھتے ہیں, لیکن وہ کلام جو اس سفر عشق میں ہر انسان سنتا آ رہا ہے, حسین کی جو آواز ہے اسی کو میں پیش کرتا ہوں. حسین 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 حسین
دعا ہے خدا متعال سے کہ خدا سب کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے. انشاءاللہ خدا آپ کو اگلے برسوں میں بھی ہر سال انشاءاللہ لے آئے. اور تمام مومنین جو دیکھ پا رہے ہیں اس نام کی جو تاثیر ہے, ایک نام ہی ایسا ہے کہ جو مقناطیسی قوت رکھتا ہے, ہر شخص بڑا چلا آ رہا ہے امام حسین علیہ السلام کے ذکر مبارک کی طرف, خود امام حسین کے وجود کی طرف. یقیناً یہ نام ایسا ہے کہ جو دلوں کو گرما دیتا ہے, جو زندگی میں تحریک اور حرارت پیدا کرتا ہے, جو حرکت اور انسان کو موٹیویشن دیتے ہوئے زندگی کے بلند اہداف کی طرف بڑھنے کے لیے رہنمائی کرتا ہے. یقیناً دلیل ہے امام حسین علیہ السلام کا یہ نام اللہ تعالیٰ کی جانب کہ جنہوں نے اپنی زندگی اور اپنی یہ شہادت بھی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دی, اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں لے جاتے ہوئے کر دی. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہمیں خدا سے ملاتی ہیں, خدا سے جوڑتی ہیں اور درمیان کے تمام فاصلے طے ہوتے نظر آتے ہیں. آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا سے ملیں, خدا تک پہنچیں, خدا کے راستے سے ہم کنار ہوں, تو یقیناً نام حسین وہ بہترین ایک رسی ہے کہ جسے بلا شبہ آیت الکرسی کی اس تعبیر کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رسی کہا جا سکتا ہے کہ جو ہمیں ایک سرے سے تو حسین سے جوڑتی ہے اور دوسرا سرا ملتا ہے خدا سے. یقیناً آج اگر اس دنیا میں بھی حسین سے ہم جڑے ہیں تو یقیناً جنت میں بھی شفاعت حسین کے ہم محتاج ہوئیں گے, اور ان شفاعت کو حاصل کرتے ہوئے انشاءاللہ جوانان جنت کے سردار کے ساتھ جنت میں جا پہنچیں گے. ہمارے ساتھ کچھ اور زوار بھی موجود ہیں, ان کی خدمت میں سلام عرض کریں گے. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہاں سے تشریف لائے؟ ہندوستان, ممبئی. ہندوستان سے تشریف لائے, کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے اگر جنت زمین پہ کوئی چیز جنت ہوتی تو کربلا ہوتی. سبحان اللہ. کربلا نہیں دیکھی تو لوگ جنت مانگتے ہیں, کربلا دیکھنے کے بعد کربلا ہی مانگتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ انڈین موقف ہے, بہت سارا سفر آپ نے طے کیا, آپ کو کوئی پاکستانی انڈین موقف نظر نہیں آ رہا ہوگا, لیکن اب نظر آئے تو کیا فرق نظر آیا؟ فرق ایک اپناپن نظر آیا, جو لینگویج بیریئر تھا وہ نہیں ہے, جو غذا میں جو ڈفرینس تھا وہ نہیں ہے. دوسری چیزیں صرف یہاں پر غذا سے نہیں ہے, جو روحانیت ہے جیسے دعائیں, مجالس وغیرہ جو نہیں سننے ملتی تھی دوران واک, وہ بھی اب سب اویلیبل ہو گئی ہیں. تو کافی اسپریچویلٹی میں بھی کافی فرق پڑا ہے. پہلی بار آئے یا پہلے بھی آ چکے؟ پہلے آ چکے, کافی مرتبہ آ چکے. تو فرق لگ رہا ہے اس بار, تعداد زیادہ ہے, جوش زیادہ ہے کچھ؟ اصل فرق انسان کے وجود کے اندر واقع ہوتا ہے. وہ یہاں یہ تو صرف ظاہر ہے, باطن اس کا انسان کے وجود میں آپ کیا درک کر سکتے ہیں. میں شاید آپ سے کچھ اور پوچھتا, لیکن اس جواب پر انتہا ہے. بس فرق یہاں تلاش نہیں کرنا ہے, فرق یہاں تلاش کرنا ہے کہ میں پہلے اگر آ چکا ہوں تو اس زیارت سے پہلے کی زندگی کیسی تھی, بعد کی زندگی کیسی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ بزرگ ہیں ماشاءاللہ. پہلی بار آ چکے یا پہلے آ چکے؟ تو کیسا محسوس ہو رہا ہے شاہراہ مقدس؟ ویری ہمبلنگ. ماشاءاللہ. کیا پیغام دینا چاہیں گے جو اسکرین پر آپ کو دیکھ رہے ہیں, بہتی آنکھوں کے ساتھ, لرزتے وجود کے ساتھ, چاہ رہے ہیں کہ ادھر ہوتے لیکن نہیں ہیں؟ نہیں, ان کو آنا چاہیے, بس مولا سے دعا کرنا چاہیے کہ میرے کو بلا لینا. ایک بار مولا بلا لے تو آپ کی تقدیر ہی کھل گئی بس. ماشاءاللہ. یعنی کچھ اور مانگنے کی بجائے کربلا مانگے, کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی. سلامت رہیے آپ, سفر بامعرفت ہو انشاءاللہ. جی کیا کہنا چاہیے؟ جملہ کہنا چاہتا ہوں, کربلا آ کر کے حسین سے حسین مانگے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بہت خوبصورت جملے پہ در پہ انہوں نے دیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. کہاں سے تشریف لائے؟ میں پاکستان سندھ سے آیا ہوں, خیرپور میرٹھ سے. ماشاءاللہ سندھ سے بہت بڑی تعداد ہے. سال ہو گئے مجھے آتے ہوئے. لگاتار جب پہلی بار آیا تھا میں, اب میں ایک روٹی کم کھاتا ہوں, کمیٹی ڈالتا ہوں, پیسے علیحدہ کرتا ہوں, کربلا ضرور آتا ہوں. اللہ اگر اکبر. نہیں ہوگا اللہ میں مر جاؤں گا. اللہ اکبر. یہ جذبات ہے, یہ احساسات ہیں. حسین پہ نہیں آؤں گا نا, وہ میرا آخری سال ہوگا. اللہ آپ کو سلامت رکھے, ہر سال رہے, اور ہر سال یہ جو 40 کو آپ نے اتنا عالمی بنایا, آپ کا کردار ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو. جب مولا نے آخری ٹائم پہ علم ناصر کا اوکا لگایا تھا نا, یہ سارا اس کا جواب ہے. لبیک یا حسین اس کا جواب ہے. مولا ہم حاضر ہیں. جو نہیں آ رہے یا کوشش کرتے ہیں نہیں آ پاتے, کیا پیغام دیں گے؟ وہ آئیں, روٹی نہ بھی کھائیں, بھوکے سوئیں, مگر یہاں آئیں. مولا ان کو کیا کیا کھلا رہا ہے اپنے صدقے. نمک سے روٹی کھا لینا لیکن زیارت حسین کو ترک نہ کرنا. خدا آپ کو بامعرفت زیارت نصیب فرمائے اور ہر سال لے آئے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ بہت بڑی ایک نوجوانوں کی تعداد ہے اور بزرگان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہاں سے تشریف لائے؟ پنجاب بکھر سے.
पाकिस्तान से तशरीफ लाए आप, पहली बार है या पहले भी आ चुके हैं? पहले भी आ चुके हैं। माशाअल्लाह, आप ज़रा जज्बात का इजहार करिएगा कि शाहराह पर आपको हर तरफ मवाक़िब, खिदमत करने वाले ज़ायरीन, हर तरफ एक रूहानी माहौल नज़र आ रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है। यानी जैसे हम चाहते हैं कि ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारे, तो आपको यहाँ लग रहा होगा कि तालीमात इस्लाम हर तरफ नज़र आ रही हैं। बिल्कुल हर तरफ नज़र आ रही है। क्या पैगाम देना चाहेंगे जो घरों में है और चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस शाहराह पर आए? आप अपने एहसासात उनके लिए क्या? मैं ये कहूँगा कि जितने लोग घरों में हैं उन सब को चाहिए कि करबला की मशी ज़रूर करनी चाहिए। मशी ज़रूर करनी चाहिए, ज़ियारत के साथ साथ मशी अरबईन का भी हिस्सा भी। आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो है वो सिलसिला जारी व सारी है और तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है और नजफ़ से पैदल करबला का सफ़र जारी व सारी है। और यकीनन आप ये मनाजिर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आलमी शोहरत याफ्ता नौहा खान, मनकबद खान, जनाब शाहिद बल्तिस्तानी साहब। हम उनसे जो है वो कुछ कलाम भी सुनेंगे और इस सफ़र के हाल व अहवाल भी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो आपका अल्लाह तबारक व तआला सफ़र बाबरकत करे। चाहेंगे कुछ जो है वो मोमिनीन के लिए, नाज़रीन देखने वालों के लिए क्या पैगाम देंगे इस मशी के हवाले से, और आपके कुछ कलाम भी सुनना चाहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कई सालों से इस मशी का एक सिलसिला है जो नजफ़ से करबला पैदल रवी का एक मामला है जिसमें हर रंग व नस्ल के लोग शामिल होते हैं। और इस मशी की ख़ूबसूरती ये है कि ये बैक वक्त ताज़ियत भी है, नुसरत भी है और मुस्तक़बिल में कायम होने वाला जो माशरा है जो ज़हूर इमाम के बाद कायम होगा उसकी एक बहुत खूबसूरत एक मिसाल भी है। ये कहा जाता है ना कि जब मौला का ज़हूर होगा तो अदल कायम हो जाएगा, कोई किसी के साथ जुल्म नहीं करेगा, बल्कि लोग एक दूसरे की मुश्किलात हल करने की कोशिश करेंगे, लोग एक दूसरे के लिए मदद करेंगे। अगर आज दुनिया ये देखना चाहती है कि ज़हूर के बाद माशरा कैसा होगा तो वो नजफ़ से करबला पैदल चल के देखे, सुभान अल्लाह। उसे नज़र आएगा कि यहाँ हर आदमी एक दूसरे की थकन दूर करना चाहता है। सुभान अल्लाह। हर आदमी ये चाहता है कि वो उसको खाना खिलाए, उसे पानी पिलाए, उसकी खिदमत करे, उसकी थकन दूर करे और उसे कोई भी मसला हो वो उसे हल करे। माशाअल्लाह। तो यकीनन ज़हूर के बाद यही होगा कि तमाम मरज़ दूर हो जाएंगे, तमाम बुराइयाँ दूर हो जाएंगी और इंसान के काम आना शुरू हो जाएगा। तो ये मशी ज़हूर की एक बहुत छोटी सी मिसाल है और ताज़ियत तो है ही कि सैयद सज्जाद ने अहले हरम के साथ करबला से कूफा, कूफा से शाम जो पैदल रवी की है, हम उसी की ताज़ियत के लिए ये पैदल रवी करते हैं। और तीसरी बात नुसरत इमाम, यानी कि आज भी अपने बच्चों के साथ, अपने खानवादे के साथ जिस तरह अहले हरम ने सफ़र किया, हम जनाब ज़ैनब की तहरीक की कामयाबी की दलील बनकर नजफ़ से करबला पैदल रवी करके ये बताते हैं कि हाय हाथ मिन्ना ज़िल्ला लब्बैक या हुसैन फ़या लैतनी कुन्तु माकुम। ये सारी बातों की दलील है ये मशी। मौला हमें इसमें हमेशा अपना हिस्सा डालने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। आप सबका बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे आखिर में एक दो जुमले कुछ कलाम के नोहे के आप जिक्र फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया। चले मैं एक अरबईन के उन्वान से एक नोहा पढ़ा था, मैं उसका एक शेर पढ़ देता हूँ। जी जी ज़रूर। अरबईन अरबईन अरबईनुल हुसैन, अरबईन अरबईन अरबईनुल हुसैन, लब्बैका यब्ना ज़हरा लब्बैका या हुसैन, लब्बैका यब्ना ज़हरा लब्बैका या हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम तहदीर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं अपने वक्त का। आप नाजरीन देख रहे थे इस वक्त जो है वो उशाकुल हुसैन जो है वो सफ़र नजफ़ से करबला पैदल सफ़र का सिलसिला जारी व सारी है। और इस सफ़र के दौरान बहुत से मोमिनीन भी हमें मिलते हैं जो अपने ख़यालात का इज़हार फरमा रहे थे। और यकीनन ये ख़ूबसूरत सफ़र नजफ़ से करबला
پیدل گامزن ہے، اور جس قدر یہ دن 40 کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، لوگوں کے جوش جذبے اور محبت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور تعداد میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر روحانی ماحول آپ کو یہ سفر میں ملے گا، جس سفر کے اندر بچے بوڑھے جوان مرد عورت سب شامل ہیں، اور یہ قافلے رواں دواں ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب۔ آج چونکہ 17 سفر المظفر ہو چکی ہے، اور لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد 40 سے پہلے کربلا معلیٰ پہنچیں اور امام کی زیارت کریں، اور زیارت 40 بھی پڑھ سکیں، اور ساتھ میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کو پرسہ بھی پیش کر سکیں۔ یقیناً بہت دل سوز مناظر بھی ہمیں نظر آتے ہیں جب ان مناظر کو دیکھتے ہیں، اور دل میں یہ خواہش اور تمنا پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سعادت نصیب کرے کہ ہم بھی اس سفر میں شامل ہو سکیں اور اپنی اس زیارت کو کربلا کے اندر زیارت کر سکیں۔ چونکہ عمومی طور پر معصومین کی روایات میں زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اور اس اہمیت اور فضیلت کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر 40 کی زیارت کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو قدم بہ قدم یہ مناظر بھی دکھاتے رہیں گے، اور ہر قدم آپ ناظرین کی جانب سے پیدل سفر کا اٹھتا رہے گا، اور اس ثواب میں ہمارے ناظرین بھی شامل ہوتے رہیں گے۔ یقیناً یہ سلسلہ جو چل رہا ہے صبح کا وقت ہے، اور مومنین بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ استراحت کرنے کے بعد پھر گامزن ہیں اس سفر پر، اور یقیناً وہ گرمی کی پرواہ کیے بغیر اس سفر پر نکل پڑے ہیں، اور اس سفر میں جو ہے وہ پیدل سفر ہو رہا ہے، جس سفر کے اندر ہر قسم کی سہولت موجود ہے۔ انسان چل رہا ہے، پیاس کی شدت پر ہر قدم پر پانی موجود ہوتا ہے، انسان اگر بھوک محسوس کرتا ہے تو ہر قدم پہ آپ کو کھانا نصیب ہوتا ہے، اور انسان اگر جو ہے وہ تھکاوٹ محسوس کرتا ہے تو اس کے لیے استراحت کا مقام موجود ہے۔ انسان سونا چاہتا ہے، آرام کرنا چاہتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو اس سفر میں ملیں گی، اور اس گرمی کی شدت کے باعث بھی کسی طور بھی ان زائرین امام حسین کا جو جوش جذبہ ہے یہ کبھی بھی ان کی اس عشق کے سفر میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، اس سفر میں حائل نہیں ہو سکتا۔ یہ محبتوں بھرا سفر ہے جس میں کوئی بھی رکاوٹ انہیں حسین ابن علی تک پہنچنے سے منع نہیں کر سکتی۔ اور جیسا کہ مسلسل آپ کی خدمت میں وہ روایات عرض کر رہا تھا کہ جن روایات کے اندر معصومین علیہم الصلوۃ والسلام نے زیارت امام حسین علیہ السلام کی ترغیب دلائی اور زیارت امام حسین کے کرنے کا حکم دیا بعض روایات میں، یقیناً کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح بیان فرمایا کہ زیارت امام حسین کی کیا اہمیت ہے، اور خود آپ کی زندگی میں بھی آپ نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی اہمیت بھی بیان فرمائی، اور خود امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو بھی بیان کیا، اور اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ایک شقی قوم ہوگی کہ جو ہے وہ امام حسین کو قتل کرے گی، اور پھر اس کے بعد آپ نے خوشخبری بھی دی کہ جو بھی اس حسین کی زیارت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے شمار اجر عطا کرے گا۔ اور اگر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں آپ کی زندگی میں بھی یہ ملتا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی میں وہ کربلا کے اس مقام سے گزرے ہیں، اور یہ سرزمین جس کی جانب یہ قافلے پیدل رواں دواں ہیں، اس سرزمین کی اہمیت اور فضیلت کو بھی واضح کیا کہ حضرت علی ابن ابی طالب جب جنگ صفین سے واپس پلٹ رہے تھے تو جب کربلا کی سرزمین سے آپ کا گزر ہوا تو کربلا کی سرزمین پر آپ رکے، اور رک کر یہاں اس سرزمین پر بیٹھے اور خاک کی ایک مٹھی اٹھائی اس سرزمین سے۔ ایک خاک کو اٹھانے کے بعد حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنے با وفا اصحاب جب انہوں نے پوچھا کہ اے علی اس سرزمین پر کیوں بیٹھے ہیں، کہا کہ یہ وہ سرزمین ہے، اسی سرزمین پر ہماری سواریاں بٹھائی جائیں گی، ہمارے جوانوں کے شہید کیا جائے گا، ان کا لہو اسی سرزمین میں جذب ہو جائے گا، اور پھر فرمایا کہ ہماری بیٹیوں کی ردائیں اسی سرزمین پر جو ہے وہ لوٹی جائیں گے۔ ہمارے ساتھ زائرین ہیں، ہم وقتاً فوقتاً ان سے بات کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آپ کا کیا نام ہے اور کہاں سے؟ راشد علی فرام پاکستان. پاکستان سے ہیں. ماشاءاللہ آپ جو ہے وہ زیارت کے اور اس سفر پر آئے ہیں. آپ کا یہ سفر جو ہے وہ پہلا سفر ہے یا پہلے بھی یہ سفر کر چکے؟ پہلے بھی آیا تھا 2019 میں آیا تھا اور دوسرا سفر ہے یہ. ماشاءاللہ اللہ آپ کے سفر کو قبول فرمائے. آپ کے کیا جذبات ہیں اس سفر میں؟ آپ مومنین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جو بھی ہیں دکھ سکھ تکلیف برداشت کر کے ادھر آئے ہیں سفر پہ زیارت پہ. عشق کربلا ہے, امام حسین کی جو ہے محبت ہے دل میں, اس کی وجہ سے ادھر ہے. ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس سفر کو قبول فرمائے. یقیناً جو ہے بہت خوبصورت اور بہت عمدہ سفر جو ہے وہ رہا ہے اور جو ہے وہ ہمارے ساتھ گزار بھی ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام. میں محمد صالح نام میں پاکستان سے آیا ہوں. ماشاءاللہ انشاءاللہ یہ تمام سفر بہت بہتر ہے. عشق حسین ہے, اس کے لیے دعا سب کے لیے دعا کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سفر کو قبول کرے اور آپ کے اس عشق کو سلامت رکھے انشاءاللہ. یہ آپ کا پہلا سفر ہے؟ پہلا سفر ہے ماشاءاللہ. تو پہلے سفر کے اندر جو ایک خاص احساسات جذبات ہوتے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ زبردست ہے, اس کے کو تو بات ہی نہیں ہے. بے شک بے شک, کیونکہ یہ سفر ایسا ہے. بالکل یہ ایسا سفر ہے کہ جو بیان کرنے کے جو ہے وہ قابل نہیں ہے, یہ دیدنی ہے انظر. بہت شکریہ, آپ اپنے سفر کو جاری رکھیے گا. یقیناً بہت عمدہ سفر ہے کہ انسان جو ہے وہ اگر اس سفر کو اس کے لطف اور روحانی مناظر کو دیکھنا چاہتا ہے, جیسے آپ کی اسکرین پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں, یقیناً وہاں بیٹھ کر بھی آپ یہ مناظر تو دیکھ سکتے ہیں, لیکن جس طرح سے آپ اس سفر میں خود آ کر اور اس سفر میں چل کر جو مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں, شاید وہ مناظر آپ کو کہیں محسوس نہ ہوں. یقیناً آپ حاضر ٹی وی کی سکرین کے ذریعے دیکھ رہے ہیں تو وہ روحانیت محسوس کر رہے ہوں گے. یقیناً آپ جب آنکھیں بند کریں تو خود کو کربلا کے اندر محسوس کر رہے ہوں گے. آپ بھی یہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ ہم بھی لمحہ بلمحہ جس طرح سے یہ سفر جاری و ساری ہے آپ دیکھ رہے ہیں, تو گویا آپ کو یہ لگ رہا ہے ہم بھی قدم بقدم کربلا کی جانب بڑھ رہے ہیں. وہ کربلا جس کے بارے میں روایت عرض کر رہا تھا کہ امام علی مقام جب بیٹھے ہیں, انہیں یہ تعارف کروایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہمارے جوانوں کو شہید کیا جائے گا, ہماری بیٹیوں کی چادروں کو چھین لیا جائے گا. یہ سرزمین کربلا کی سرزمین ہے. اور اس وقت روئے ہیں امام علی مقام اور پھر اس مقام سے گزر گئے. گویا آپ نے بھی کربلا کو یاد کیا اور اس واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ کربلا کا یہ دل سوز واقعہ پیش آئے گا جس میں ہمارے بیٹوں اور ہماری اولاد کو شہید کر دیا جائے گا. یقیناً یہ وہ مقامات ہیں. اور پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی اور امام حسن علیہ السلام بھی آپ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جب آخری وقت میں امام علی مقام کو زہر دیا گیا اور شدت زہر کی وجہ سے آپ تڑپ رہے تھے اور جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے جب باہر آ رہے تھے نا, اس وقت امام حسین اپنے امام اور بڑے بھائی حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے, ان کا سر اپنے زانوں پر رکھا اور روئے جا رہے ہیں اپنے بھائی کی اس حالت کو دیکھ کر. جب آنکھوں سے آنسوؤں کو تو امام حسن علیہ السلام نے دیکھا, اس وقت امام حسن کی آنکھوں سے بھی آنسو آئے اور روئے ہیں امام حسن. امام حسین نے پوچھا اے بھیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس وقت دیکھ کر کہا کہ جب حسن علیہ السلام بھی رو رہے ہیں, امام حسین بھی, دونوں نے وجہ پوچھی. جب امام حسین سے وجہ پوچھی, امام حسن نے کہا بھیا حسین کیوں رو رہے ہو؟ کہا بھیا آپ کی حالت دیکھ کر رو رہا ہوں کہ زہر دے دیا گیا ہے, آپ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے ہیں نا. اس وقت جب یہ کہا, اس وقت امام حسن علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, یا لا یوما کا یوم کا یا ابا عبداللہ, اے حسین تجھ جیسا تو دن کسی کا دن نہیں ہوگا, جیسا تیرا دن ہے ایسا دن تو کسی کا نہیں ہو سکتا. جو مصیبت تجھ پہ آئے گی وہ مصیبت تو کسی پر نہیں آئے گی. جو قربانی آپ نے پیش کرنی ہے وہ قربانی کوئی پیش نہیں کر سکے گا. تو یقیناً اندازہ لگائیے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بھی اس وقت کو یاد کیا اور آپ نے اس وقت کو یاد کر کے گریہ کیا کہ وہ منظر ہوگا, وہ دل سوز اور دل خراش منظر ہوگا کربلا کا, وہ منظر کہ جو ابا عبداللہ الحسین کے علاوہ کوئی بھی اس کو برداشت نہیں کر سکے گا. اور اس طرح جو ہے وہ امام علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس منظر کو یاد کرتے رہے اور کربلا کے زیارت کی اہمیت اور فضیلت کو بھی آپ نے ہمیشہ بیان کیا. جیسا کہ میں آپ کے خدمت میں مسلسل روایات بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اسی طرح سے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ کی جو ہے وہ جو باقی زندگی
کربلا کے بعد آپ نے گزاری ہے، یقیناً آپ کی جو مکمل ٹوٹل زندگی ہے وہ تقریباً اس کے بعد آپ جو ہے وہ 95 ہجری تک زندہ رہے. اس وقت تک جب بھی آپ زندہ رہے آپ ہمیشہ یہ کوشش کرتے تھے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کو آئیں. کہ ایک راوی نے یہ روایت کی ہے کہ میں نے مسجد کوفہ کے اس باب الفیل میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ زیارت کر رہے ہیں، اور میں نے ایک شخص کو دیکھا جو وہاں سے داخل ہو رہا ہے. اس منظر کو دیکھنے کے بعد کہا میں اس کے پیچھے گیا، میں جا کر دیکھوں کہ یہ کون سا منظر ہے اور یہ کون شخص زیارت کے لیے آیا. جب میں پوچھتا وہاں پہنچا تو لوگوں نے بتایا یہ علی ابن الحسین ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا آپ یہاں کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ تو کہا میں اپنے والد بزرگوار اور اپنے جد کی زیارت کے لیے آیا ہوں. تو یقیناً کس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ یہ زوار زائرین کے یہ قافلے چلتے جا رہے ہیں اور کس مہر و محبت سے ان کی خدمت کی جا رہی ہے، ان کے کھانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے. اور یقیناً جو ہے وہ چلتے ہوئے کچھ لوگ ناشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے ناشتے کا اہتمام ہے، اور ہر قسم کی ایک اچھی غذا جو ہونی چاہیے وہ موجود ہے. چائے پینا چاہتے ہیں وہ موجود ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ناشتہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے جس سے بھی جو ہے وہ آپ ناشتہ کرنا چاہیں وہ سب تمام سہولیات آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں. اور یقیناً کس مہر و محبت کے ساتھ جو ہے وہ یہ زائرین کی خدمت کی جا رہی ہے، اور لوگ جو ہے وہ اپنا اپنا حصہ لے کر یہاں سے چل دیتے ہیں. سفر بھی جاری رہتا ہے، اور جو ہے وہ اس سفر میں انسان کی جو بھوک پیاس ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. یقیناً یہ خوبصورت لمحات ہیں جو آپ کو ہادی ٹی وی کی اسکرین کے ذریعے دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور آپ یہ ملاحظہ کر سکتے ہیں کس قدر روحانی اور خوبصورت مناظر ہیں کہ جہاں سے زائرین کے چلنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. قدم بقدم انسان کی پیاس کے لیے پانی موجود ہے. قدم بقدم اگر انسان کو بھوک کا احساس ہو رہا ہے تو آپ کی بھوک کو ختم کرنے کے لیے بھی ہر قدم پر جو ہے وہ مواقع لگے ہوئے ہیں جہاں انسان جو ہے وہ اپنے کھانے کی وہ تمام چیزیں جو ایک انسان کو ضرورت پیش آ سکتی ہے وہ تمام چیزیں یہاں مہیا ہیں کہ انسان کو اپنے کھانے اور پانی کی کوئی فکر نہ ہو، بس وہ چلتا ہوا حسین ابن علی کی جانب گامزن رہے. ہاں یہ جتنے بھی زائرین چل رہے ہیں بس ان کے ذہنوں میں بس ایک ہی نام ہے کہ ہم چل رہے ہیں سوئے کربلا اور ہمیں جانا ہے کربلا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی جانب. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے زوارین کو جو بھی زائرین ہیں ان کو اپنی طرف بلا رہے ہیں، اور بلانے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ زائرین کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پر تھوڑی دیر رکیے، ہمارے پاس آئیے، آپ اس غذا میں سے کچھ تبرکاً چکھ لیجئے تاکہ جو ہے وہ ہماری برکت کا باعث بن سکے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر خوبصورت مناظر ہیں کہ جو زائرین کو بار بار اپنی طرف بلا رہے ہیں. یقیناً اگرچہ ہوتا تو ایسا ہے کہ جو ہے وہ جسے کھانا ہوتا ہے وہ چل کر جاتا ہے، یہاں پر کھانا خود جو ہے وہ ان کے لیے پیش کیا گیا ہے اور ان کی خدمت میں لایا جاتا ہے کہ آپ آئیے اور ہمارے پاس سے تناول کیجئے. ان کے پیچھے جاتے ہیں، ان کی منتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، انہیں یہ کہتے ہیں کہ اے زائر ابا عبداللہ الحسین، آپ چلے آئیے ہمارے اس موقف کے اندر، آپ ایک قدم رکھیے تاکہ ہمارے لیے برکت کا باعث ہو، آپ ایک لقمہ ہی چکھ لیجئے تاکہ کل ہم جب زائرین امام حسین کی خدمت کرنے والوں کا نام ہو اس میں ہمارا نام بھی لکھا جائے، ہم بھی زائرین ابا عبداللہ الحسین میں سے ہو جائیں اور حسین ابن علی کے زواروں کی خدمت کرنے والوں میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے. جس قدر یہ قافلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس طرح سے تعداد میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، لوگوں کے جوش جذبے اور محبت میں اضافہ ہو رہا ہے. ہر قدم انہیں حسین ابن علی کے قریب کر رہا ہے اور ہر قدم کربلا کے قریب کر رہا ہے. چونکہ 17 جو ہے وہ سفر المظفر ہو چکی ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ 40 اور چہلوں میں امام حسین کا دن قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور محبتوں اور عشق کا یہ سفر چلتے ہوئے اختتام پذیر ہوگا قبلہ عشاق الحسین کربلا معلی میں. لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. یقیناً امام عالی مقام امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے جیسی کسی کی قربانی نہیں، ان کے روز جیسا کوئی روز نہیں، ان کے اصحاب جیسے کوئی اصحاب نہیں، ان کے امتحان جیسا کوئی امتحان نہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسی عظیم قربانی پیش کی انسانیت کو بچانے کے لیے، انسانی اقدار کو بچانے کے لیے، انسانی اخلاق، عزت و شرف اور آزادی اور حریت کو محفوظ رکھنے کے لیے
اور ان تمام تر عنوانات کو ان کے معنی عطا کیے ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یقیناً وعدہ الہی ہے اذکرونی اذکرکم، اگر میرا ذکر کرو گے، اگر مجھے یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ یقیناً یاد انبیاء نے بھی رکھا، یاد ائمہ نے بھی رکھا، یاد اوصیاء اور اولیاء نے بھی رکھا، لیکن جیسی یاد اللہ کی حسین نے کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں اس ریگزار کربلا پر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا ہے، ویسا یاد رکھنا ہمیں تاریخ میں دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی حالت میں یاد رکھا ہے کہ جب ہر ایک اپنے اللہ کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اپنی ذاتی مشکلات کو یاد رکھتا ہے، لیکن امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری دم تک، آخری سجدے تک اللہ کے نام کیا، اور ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ یا اللہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یا غیاث المستغیثین لا معبود سواک، اے اللہ میرے لیے یہ سب سہنا بہت ہی آسان ہے، یہ تمام تر مشکلات سہنا میرے لیے آسان ہے اس لیے کہ تو دیکھ رہا ہے، اور حسین ان ایام سے بڑھ کے تیرے اس انتقام لینے والے دن پر اور حساب لینے والے دن پر یقین رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سب مشکلات امام علیہ السلام نے برداشت کی، کہ جن کو یاد کرتے ہوئے آج بھی ہر ایک شخص آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، اور ہمیں یہاں پر ہر شخص میں ایک کائنات نظر آتی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہر ایک بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ یہاں پر نہایت ہی زیادہ تعداد میں زائرین ہیں کہ جو موجود ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ مواقع پر موجود احباب مسلسل خدمت کرتے نظر آ رہے ہیں، ہر طرح کا زائر آپ کو اس قافلے میں نظر آئے گا، اور ہر طرح کے خدمت گزار بھی آپ کو یہاں پر نظر آئیں گے کہ جو بغیر کسی دن اور رات کی تفریق کے، بغیر تھکن کا احساس کیے، بغیر کسی اپنی مالی حالت کو دیکھے، اپنی معیشت کا حساب لگائے، یہ مسلسل صرف بنام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ سفر مسلسل انہیں قریب کر رہا ہے امام حسین علیہ السلام سے۔ آپ نے وہاں مواقب کی بات سنی تو یقیناً مواقب کے سب سے اہم نکات میں ایک یہ ہے کہ آپ کو ایک مذہبی اور ایک دینی مرکزیت نظر آتی ہے، ہر پوائنٹ پر آپ کو پہنچ کر دین اسلام کا ایک ایسا نمونہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو آپ کی زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ اپنے ماحول میں انسان اپنی تربیت کرتے ہوئے کوشش تو کرتا ہے کسی حد تک، لیکن ارد گرد کا ماحول اسے متاثر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوستوں کے چننے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر تم دوست اچھا چنو گے تو یقیناً تم پر بھی وہ اثر رکھے گا، اور تمہارے کردار میں، تمہارے اعمال میں اس کی دوستی کی جھلک نظر آئے گی۔ کہیں تم خود تو اچھے ہو، ایسا نہ کرنا کہ کوئی برا دوست تم اپنے ساتھ چن لو کہ جو تمہیں برا بنا دے۔ ہمارے ساتھ زوار مسلسل موجود ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہاں سے تشریف لائیں گے؟ جی پاکستان سے جی۔ جی آپ کا پہلا سفر ہے، پہلے بھی زیارت کر چکے؟ پہلا سفر ہے میرا جی یہاں پہ، اور ماشاءاللہ جی یہاں پہ مولا حسین علیہ السلام کی کربلا جنت نظر آ رہی ہے، جیسے ایک جنت کا سما ہوتا ہے۔ جیتے جی ہم زائرین جنت میں جا رہے ہیں۔ یہاں پہ بے شمار، یعنی کہ آپ جس چیز کی بھی طلب چاہتے ہیں نا، آپ جس چیز کی بھی طلب چاہتے ہیں نا، فوراً بھی وہ آپ کے آگے آ جاتی ہے۔ اور ماشاءاللہ ہم پاکستان ڈسٹرکٹ جھانگ سے تشریف لائے ہیں، اپنا قافلے کی شکل میں آئے ہیں، اور مولا حسین بادشاہ کی زیارت کے لیے زائرین سارے جا رہے ہیں، اور کسی قسم کی کوئی پریشانی، کوئی دقت نہیں ہے۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو میڈیسن والے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جس چیز کی آپ طلب کرنا چاہیں تو وہ آپ کو میسر نہ ہو، سب کچھ آپ کو یہاں ملے گا۔ آپ نے جنت کا نام لیا، جنت کی ایک وجہ بتائی گئی کہ آپ جو کچھ جنت میں ارادہ کریں گے آپ کے سامنے جی جنت کا یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ جنت کے اندر بھی یہ چیزیں سب آپ کو ملے گی جو یہاں پہ مل رہی ہیں، اور میں یقیناً کہتا ہوں کہ مولا حسین بادشاہ کی یہ جنت ہے، اور جیتے جی زائرین کے لیے یہ جنت ہے۔
कुछ लोग तड़पते रहे लेकिन नहीं पहुंच पाए, क्या कहेंगे इनके बारे जी मैं कहता हूं कि मौला हुसैन बादशाह की तड़प के लिए ज़रूर वो तड़पते हैं और वो तड़पते रहेंगे, लेकिन ये चीज़ है कि जब वो उन पे मोहर लगेगी और इंशाल्लाह वो यकीनन उनकी तड़प पूरी होगी और वो तशरीफ़ लाएंगे। में? तड़प के मांगे तो सही और अल्लाह ताला उन्हें भी सआदत करम दे। में मौज उठती है ज़रूर, उनके दरियाए करम में मौज उठती है ज़रूर, मांगने वाला दिल से मांगे तो सही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सफ़र बामारिफत बनाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ये कहाँ से तशरीफ? मैं पाकिस्तान से हूँ। पाकिस्तान से। पहला सफ़र है, पहले भी कर चुकी? पहला सफ़र है। कैसा महसूस? और पहला सफ़र वैसे इंसान को कभी भूलता नहीं है, जो भी काम इंसान पहली बार करता है वो उसके दिल पर नक्श हो जाता है। क्या देख रहे हैं जो दिल पे नक्श है? नक्श ये हो रहा है, ये सफ़र इश्क है और दिल बहुत रंजीदा भी है कि हम इमाम हुसैन को उसकी औलाद का पुरसा देंगे। 72 शोदा जो शोदाए करबला हैं उनका पुरसा देंगे, उनको अपने बाबा का, उनकी अम्मा का, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैह का। और ये इश्क के सफ़र है, इस पे हम रवां दवां हैं और इंशाअल्लाह जी बाकी लोगों के लिए दुआ गो हैं जो रह गए हैं इससे, जिनकी तड़प है उनके लिए भी हम दुआएं कर रहे हैं, अपने घर वालों के लिए जो रहते हैं उनके लिए भी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह मौला ज़रूर उनके लिए भी ये प्रोग्राम बनाएंगे और मौला मोहर लगाएंगे और वो भी आएंगे इस पर। जन्नत फिल अर्ज़ है, पहले भी ये भाई आपको बता रहे थे और हम तो देख रहे हैं, ये जन्नत फिल अर्ज़ है, इमाम हुसैन की जन्नत है। अल्लाह पाक मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके जो नहीं आ सके उनकी भी जो तौफीक़ात, जिसकी तौफीक नहीं हो रही है, जिसको कोई मसला आ रहा है वो जल्द हल हो और वो भी आएँ और देखें। यहाँ पे पूरी दुनिया से कारवां आए हुए हैं, हमने देखा है। यहाँ ये नहीं है कि सारे को शिया कम्यूनिटी है, यहाँ हमने देखे हैं सिख भी आए हुए हैं, ईसाई भी आए हुए हैं और जितनी कम्यूनिटीज़ हैं सारी आई हुई हैं और इमाम हुसैन के साथ उनकी अकीदत है, वो अपने अपने तर्ज में वो अपनी अकीदत पेश करें। अल्लाह आपके सफ़र को बामारिफत बनाए। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कहाँ से तशरीफ? जी मेरा नाम हाजी सफदर अली है, मैं पिंडी घेब ज़िला अटक से आया हूँ पाकिस्तान से। पहली बार सफ़र किया या पहले भी आए? जी मैं पहली दफ़ा इधर हाज़िर हुआ हूँ और आप यकीन कीजिए कि बहुत ही मुतासर हुआ हूँ कि जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की हमागारियत है कि आप देखें हर मसलक का, हर मज़हब का, हर मुल्क का बंदा इधर नज़र आता है। और एक ख़ास बात जो मैंने महसूस की है कि आप जहाँ जा रहे हैं मुख्तलिफ़ कौमियतें हैं, मुख्तलिफ़ रंग व नस्ल हैं, लेकिन यूँ महसूस होता है कि हम अपने रिश्तेदारों में जा रहे हैं। और मौला हुसैन का ये ख़ास करम है हम पे कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा और अब इस काबिल नहीं है हम कि मौला के दरबार में आएँ, लेकिन बस उनका करम है, वो लजपाल हैं और अल्लाह पाक सबकी ज़ियारत कबूल फरमाए। खुदावंद मुताल इमाम ज़माना हमारा ये जो हाज़री है कबूल फरमाए और अल्लाह पाक जो है इस कारवां को सदा रवां दवां रखे इंशाअल्लाह। खुदा में हुर अलैहिस्सलाम के कदमों पे चलकर इमाम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाने की तौफीक। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आप कहाँ से तशरीफ़ लाए? जी मैं अटक तहसील पिंडी घेब से मेरा। साथ काफ़िले में हैं? जी हम तकरीबन 16 बंदों का काफ़िला है हमारा। अच्छा, तो काफ़िले में सफ़र करने और मशी करने में और तन्हा मशी करने में कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है? सर यहाँ पे मैं सारा जितना मामला है ना एक लफ्ज़ में बंद करता हूँ कि दुनिया में अगर आपने जन्नत देखनी है ना तो वो अरबईन पे आके यहाँ। सुभान अल्लाह। तो ये जन्नत है। यहाँ पे किसी को ना किसी को काफ़िले की ज़रूरत है, ना किसी को किसी दोस्त की ज़रूरत है, किसी चीज़ की उसे ज़रूरत नहीं। यहाँ मौला का कोई ऐसा खसूसी करम है, बस ये सारी चीज़ें मैं एक लफ्ज़ में बंद कर रहा हूँ कि दुनिया की जन्नत है। दुनिया की जन्नत है और अल्लाह ताला सफ़र को बामारिफत बनाए। जो नहीं आ सके उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो दुआ करता हूँ सब तमाम दोस्तों के लिए, पूरी दुनिया के लिए, जो नहीं आ सके वो भी आएँ। यहाँ से जो एक दर्स मिल रहा है ना हमें, असल इस्लाम और प्यार मोहब्बत भाईचारे का, वो यहाँ से मिलता है। सुभान अल्लाह। मोहब्बत का सफ़र है, इश्क का सफ़र है। अल्लाह ताला हर साल आपको लाए और हर बार लाए इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह ताला हमारी फैमिलीज़ को भी हमारे साथ इंशाअल्लाह लेके आएगा और हम मिलकर सफ़र जारी व सारी रखेंगे और ये ता क़यामत हरारत बाकी रहेगी और इंशाअल्लाह एक दिन आएगा इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के काफ़िले में शामिल होकर उनकी सरबराही में आगे बढ़ते हुए कदमों के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम की तरफ बढ़ेंगे और उस वक्त दुनिया में मौजूद हर एक शख्स के जो अली का कलमा पढ़ने वाला है, हुसैन की अज़ामें हाथ सीने पे मारने वाला है, हर एक शख्स दुनिया की हर
दुनिया के कोने कोने से, दुनिया की हर जगह से इस शाहराए मुक़द्दस पर मौजूद होगा और लब्बैक या हुसैन कहकर इमाम हुसैन की तरफ ये उशाक बढ़ेंगे और इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अपनी नुसरत का यकीन दिलाते हुए यकीनन बढ़ेंगे। ये हौसले सलामत रहें, ये जज्बे सलामत रहें। सलाम हो उन कदमों पर और सलाम हो उन नफूस पर, सलाम हो उन जिस्मों पर कि जो अपनी थकावट का एहसास किए बगैर इमाम हुसैन की तरफ मुसलसल बढ़े चले जा रहे हैं और उनको अपने सुकून और आराम की बजाय गर्ज है तो इस बात से कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पहुँच सके। सलामत रहिए, अल्लाह ताला इन जज्बों को सलामत रखे और इन तमाम मोमिनीन की हिफाजत फरमाए। ये खैर व आफियत से अपने घर वापस पहुँचे, अपने घर वालों को बताएं कि इस शाहराए मुक़द्दस पे देखा क्या है, इस शाहराए मुक़द्दस पे हमने महसूस क्या किया है कि जो नहीं आ सके वो भी आ सके। हमारे साथ दूसरे ममालिक से भी, दूसरी ज़ुबानों से भी और दूसरी कौमियतों से भी एक बहुत बड़ी तादाद है कि जो मौजूद है और हम उन्हें कदम कदम पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर मोमिनीन में इस वक्त भी नाश्ता तकसीम किया जा रहा है जो कि नमाज सुबह के बाद से जिसका आगाज़ हुआ और ये मुसलसल तकरीबन 3 से 4 घंटे तकसीम किया जाता रहेगा उसके बाद भी, लेकिन उसकी तादाद थोड़ा रफ्ता रफ्ता कम होती नज़र आती है। यकीनन यहाँ पर कुछ ऐसे मौक़िफ़ भी हमें नज़र आते हैं कि जहाँ पर कुछ मोमिनीन हैं जो सर्विसेज दे रहे हैं, यकीनन थकन का एक एहसास कुछ देर चलने के बाद जब हो जाता है तो वो उनके पाँव दबाकर और उनकी खिदमत करके और उनको मसाज करके उनकी वो थकावट उतारते हुए नज़र आते हैं और फिर उन्हें रवाना करते हैं एक मरतबा, फिर खुदा के हवाले करते हैं एक मरतबा फिर कि जाओ अब अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के लिए तुम बढ़ोगे तो इस सवाब में हम भी तुम्हारे शरीक हो जाएंगे। और यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम ऐसा है कि जिसको याद करके हर मोमिन की आंख नम होती नज़र आती है। एक मरतबा जिस तरह उसके बदन में एक नई ताकत और नई कुव्वत का एहसास होता है कि रात भर सफ़र करने के बाद अब अगर कोई थक चुका है तो फिर जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उस मुबारक सफ़र का वो जहन में तसव्वुर लाता है और असीरान हरम और असीरान शाम का एक मरतबा जब वो सफ़र याद करता है कि जिसमें तरह तरह की मुश्किलात थीं, वो मुश्किलात के जिनको हल करने के लिए कोई मौजूद न था बल्कि उनकी तकलीफ़ों को, उनकी मुश्किलात को बढ़ाने के लिए वो बदबख्त लोग मौजूद थे कि जिन्होंने जिस तौर मुमकिन हुआ और उस तरह से असीरान हरम और अहले बैत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ों और मुश्किलात और मशक्क़तों में इजाफ़े की कोशिश की और एक वो मौका आया कि जब उन्होंने भी घुटने टेक दिए और मुहिब्बान अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी कुर्बानी की याद में और उसी फ़तह का अलम बुलंद करते हुए और उसी फ़तह और कामयाबी की यहाँ पर नवीद दूसरों तक पहुँचाते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ रहे हैं और यकीन और इस इत्मीनान के साथ कि एक रोज़ ऐसा आएगा कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर पूरी दुनिया जमा होगी। यही वजह है कि हुब्बुल हुसैन यजमाउना का नारा और शिआर बुलंद किए हर एक अपनी तफरीक करने वाली हर एक शनाख्त को मिटाकर उन्हें जोड़ रहा है, एक अलम के नीचे जमा कर रहा है, एक शाहराह पर जमा कर रहा है, एक जैसा सियाह लिबास पहने सब मौजूद हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस मरकज़ी शाहराह पर कि जिसको इस वक्त पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। यहाँ पर धड़कने वाले दिलों को या हुसैन कहते हुए सुना जा रहा है और एक ही आवाज़ में, एक ही लिबास में, एक ही रफ्तार से, एक ही कौमियत, एक ही शनाख्त लिए ये सैले रवां बढ़ रहा है। आशिकों का एक हुजूम है जो बढ़ रहा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ और अपने लश्कर में इन्होंने शामिल कर रखा है हर उम्र के लोगों को, हर तरह के इंसानों को। हर एक यहाँ पर मौजूद है, अपनी ज़िंदगी में उसका जो भी किरदार रहा यहाँ पर आकर वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यहाँ पर महसूस कर सकता है, उनकी मुबारक ज़िंदगी को, उनकी हयात तय्यबा को, उनके मुबारक अक़दार को, उनके आदात व ख़साइल को यहाँ वो महसूस कर सकता है। कहीं तालीमात की सूरत उसे ये सब बताया जा रहा है तो कहीं प्रैक्टिकली उसको ये सब देखने को मिल रहा है। यकीनन हमारे एक ज़ाहिर बता रहे थे कि वो मोहब्बतों
इत्तेहाद का जो दर्स उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ सुन रखा था, आज वो उसे अमली तौर पर यहाँ देख रहे हैं। यहाँ वो देख रहे हैं कि एक दूसरे से मिलकर कैसे रहा जा सकता है, ये देख रहे हैं कि कैसे हर तरह की तफरीक मिटाए बनामे हुसैन किस तरह से जमा हुआ जा सकता है और किस तरह से ये दाखिली इंतशारात और इफ्तराक पैदा करने वाली ये सारे इख्तिलाफात और चीज़ें बालाए ताक रखते हुए, पसे पुश डालते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर एक होकर रहा जा सकता है। यकीनन ये दर्स अपने अपने मुल्कों में, अपने अपने इलाकों में, अपने अपने घरों में नाफिज करने की ज़रूरत है, ताकि आपकी ये दुनिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पसंदीदा दुनिया बन जाए कि जिस माशरे का दर्स इमाम आली मुकाम ने दिया है, कि जिस माशरे का दर्स इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें सिखाया है। हमारे साथ मौजूद है एक ज़ाहिर जो मशी के दौरान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इनसे बात करेंगे और इनसे इनके एहसास जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कहाँ से तशरीफ? हम कारवान गुलिस्तान कासिम, श्रीनगर कश्मीर। कश्मीर से माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि हर जगह से ऐसी ऐसी जगहों से कि जहाँ से सफ़र करना इंतहाई मुश्किल और कठिन है, वहाँ से तशरीफ़ लाए। पहला सफ़र है या पहले भी आ चुके हैं? भाईजान हम कोरोना से पहले हमने स्टार्ट किया था ये मिशन। हमारे कारवान गुलिस्तान कासिम जो है कश्मीर का है, इट इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स ओन फ्रॉम द सिटी ऑफ कश्मीर। तो कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह रब, ये एक मिशन है, ये इमाम ज़माना के अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए एक आमद है इंशाअल्लाह, जब वो ज़ुहूर करेंगे और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है हम भी उसकी फ़ौज के साथ होंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ये सफ़र हमें जोड़ेगा ज़ुहूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के साथ। और हमारा एक मिशन है, मैं यहाँ से हमारा एक मिशन है मेरे गुलिस्तान कासिम का, अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं आने के लिए मुझसे कांटेक्ट करिए। 100 रुपये के दे के 100 रुपये दीजिए, उस पर मैं आपको अरबैन करवाऊंगा और इंशाअल्लाह ताला हमारा कारवान गुलिस्तान कासिम यहाँ करबला में एक घर बनाएगा जो खासकर हम जवारों के लिए जैसे कि फ्री रखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। ये जज्बे सलामत रहेंगे, ईसार ये कुर्बानी सलामत रहे और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर का वो मौसम है कि जिसमें हमने देखा कि लेने वाले आपको नहीं मिलेंगे, देने वाले इंशाअल्लाह तमाम। जैसे कि मैंने एक मैसेज लिखा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व्हाट मोर 10 and 4 10 and 4। Open your mind and the book of page, Karbala, Karbala, the beginning stage। करबला करबला करबला। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और आपके पैगाम को दुनिया सुन चुकी है और सुन रहे हैं। आप सलामत रहें इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला इन जज्बों को सलामत रखे और आप भी तमाम मोमिनीन की तरह हक़ के मारिफत अदा करते हुए बड़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उस मुक़द्दस मकाम की तरफ, उस हरम मुताहर की तरफ, उस गुंबद तला की तरफ के जिस पर या हुसैन का परचम आज भी लहरा रहा है। देखिए हमारे पास जो एक छोटे 18 साल के बच्चे हमारे साथ चल रहे हैं, हमारा मिशन है, हमारा कारवान आज तक 130 लोग चल रहे हैं, जिसमें हमारे होटल पैकेज वाले 90 हैं, उसके बाद हुसैनिया वाले भी हैं जिनको हम 0 पर यहाँ लाते हैं और इंशाअल्लाह ताला ये हमारा कारवान जारी हर साल जारी रहेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ज़ुहूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम तक ये कारवान जारी हो सारी रहेगा। नाज़रीन जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत सिलसिला जारी हो सारी है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला वक्तन फ़वक्तन जो है वो हम आपको जो है वो मनाज़र भी दिखाते रहेंगे और हमारे साथ बहुत से ज़ायरीन हैं जो बात करना चाहते हैं, एहसासात जज्बात को बयान करना चाहते हैं। हमारे साथ जो है वो एक बुज़ुर्ग खातून हैं जो अपने एहसासात और जज्बात को बयान करना चाहती हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और बयान करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आप कहाँ से? जी मैं भावलपुर से। भावलपुर से, माशाल्लाह। आपका ये सफ़र पहला सफ़र है या पहले भी सफ़र कर चुके हैं? पहले मैं बहुत दफ़ा आई हूँ लेकिन मिशी मेरा पहला सफ़र है। मशी पहला सफ़र है। अपने एहसासात जज्बात पहली दफ़ा आप चल कर जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? जज्बात तो बहुत है, इमाम हुसैन का जिसको इश्क होगा वो सफ़र करेगा और ये बहुत ज़रूरी, बल्कि सबको करना चाहिए। ये इन्हीं से इस्लाम है, इन्हीं से दुनिया है, इन्हीं से आखिरत है। माशाल्लाह यकीनन बहुत खूबसूरत अंदाज से बयान कर रही हैं। आपने जो है वो आज से पहले अपने स्क्रीन पर घर बैठकर देखा होगा, लोग चल रहे हैं, हमारी भी ख्वाहिश है हम चल रहे हैं। नहीं, आज आप खुद चल रही हैं, क्या महसूस कर रही हैं? मुझे बहुत खुशी है, आप वो लोग मोहब्बत है, उनका इश्क है जो मुझे थका ही नहीं रहा। माशाल्लाह यकीनन ये वो सफ़र है कि जिसमें बूढ़े भी जवान हो जाते हैं और इस तरह से चलते हो जाते हैं, जवान भी जवान। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और माशाल्लाह इतना सफ़र अभी तक मुझे कोई थकावट नहीं हुई। माशाल्लाह, अल्लाह आपका सफ़र बेखतर करे और आपको इस तरह से करबला लेके जाए। क्या पैगाम देना चाहेंगी जो वहाँ जिनको छोड़ के आई? यकीनन दुआएं बहुत सारी कही होंगी लोगों ने। बहुत सी दुआएं सब के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए। अल्लाह पाक पाकिस्तान को
जहाँ आपके जो पाकिस्तान के दुश्मनों को नीस्तो नाबूद करे। और इमाम हुसैन का जो सबक है वो ऐसा है कि जुल्म बर्दाश्त करने वाला और जुल्म करने वाला बराबर है। बहुत शुक्रिया, हुसैनियत जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। यकीनन बहुत उम्दा अंदाज से जो है वो अपने जज्बात का इजहार कर रही थी ये खातून कि किस कदर मेहर मोहब्बत के साथ चली जा रही हैं। और ये एक ऐसा सफ़र है कि जिसमें इंसान जिस कदर भी उम्र में इजाफा हो जाए, उम्र में फ़र्क नज़र नहीं आता, जितनी भी एज ज़्यादा हो जाए, लेकिन ये मोहब्बत, ये जोश, ये जज्बा उस कदर बढ़ता चला जा रहा है। और अपने जज्बात का इजहार कर रही थी कि हमें जो है वो उम्र का तकाजा थकाता नहीं है, बल्कि हमारे अंदर एक जोश, एक जज्बा और एक मोहब्बत मज़ीद बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे जो है हम करबला की जानिब जा रहे हैं, हमें जो है वो इस सफ़र के अंदर कोई मुश्किल पेश नहीं आती। हम जो है वो बड़े ही खूबसूरत अंदाज से चले जा रहे हैं। ये इश्क़ हुसैन इब्न अली, ये सफ़र करबला का सफ़र है, ये मोहब्बत, ये इश्क़ का सफ़र। और बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो इस सफ़र में जा रहे हैं, जोश जज्बे के साथ जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो है वो किस कदर खिदमत कर रहे हैं, जिस कदर इनसे हो सकता है ये ज़ायरीन की खिदमत करते हैं, उनकी खिदमत में कावा पेश कर रहे हैं। इस उम्र में भी जो है वो ये खिदमत कर रहे हैं ताकि इनका नाम भी जो है वो ज़ायरीन अबा अब्दुल्लाह हुसैन की खिदमत करने वालों में शुमार हो। अल्लाह तबारक व तआला इनका जो है वो ये खुलूस अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जो है वो ये पेश कर रहे हैं, यकीनन ज़ायरीन के लिए जो है वो बेहतरीन जो है वो चीज़ पेश कर रहे हैं। और ताकि इससे जो है वो इंसान की थकावट दूर हो सके, सफ़र कर रहे हैं तो ये ऐसी चीज़ पेश करते हैं जिससे इंसान की थकावट में कुछ कमी आ जाती है। मज़ीद हशाश बशाश और मज़ीद तंदुरुस्त जोश जज्बे के साथ इस सफ़र को जारी रख सकें। यकीनन जज्बों का ये सफ़र, इश्क का ये सफ़र जारी व सारी है। और इंसान इस सफ़र में करबला की जानिब पैदल चले जा रहा है। और ये वो सफ़र जिसमें थकावट इंसान के इस सफ़र में आड़े नहीं आ सकती, बल्कि हर कदम पे जब थकावट महसूस करते हैं, हर कदम पे जब इंसान थोड़ी सी नकाहत महसूस करता है, जब इंसान के पाँव पर वरम आ जाते हैं, जब छाले आ जाते हैं ना, तो इन तमाम मुश्किलात में याद करते हैं सैयद सज्जाद को, अपने मौला व आका की उन मुश्किलात को और उस सफ़र को याद करते हैं कि मौला व आका ने किस तरह से कूफा से करबला से कूफा और कूफा से शाम बीवियों के हमरा इतने मुश्किलात कि आपकी हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ और गले में खारदार तोक और इस अज़ियत के साथ आपने सफ़र गुजारा। उस सफ़र को इमाम सज्जाद की उस मुश्किलात को याद करते हुए हम राह करबला में चल रहे हैं। और ये हमारा सफ़र जो है वो जारी सारी है। हमारे साथ बहुत से ज़ायरीन भी मौजूद हैं जो है वो यहाँ इस सफ़र में शामिल हैं। हम उनसे उनके जज्बात और उनके एहसासात को आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। कहाँ से हैं आप? लैया से। लैया से, माशाअल्लाह। आप करबला के सफ़र में शामिल हो रहे हैं, यकीनन अल्लाह आपके सफ़र को कबूल फरमाए। कैसे महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर महसूस कर रहे हैं। और ये आपका जो सफ़र है ये पहला सफ़र है, और यकीनन आप देखा करते थे वो मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे लोग जा रहे हैं, अब आप खुद चल के जा रहे हैं, आपके क्या एहसास जज्बात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी बार आ रहा हूँ यार के लिए पैदल। क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को? बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह, सबको आना चाहिए। ये सफ़र हुसैन सबका बराबर है, शिया सुन्नी में कोई फ़र्क नहीं है। तमाम जो है वो मसलक की को बाला ताक रखते हुए हमें सफ़र करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आप सफ़र को जारी रखिए। अल्लाह तबारक व तआला आपके सफ़र को कबूल फरमाए। यकीनन ये वो रास्ता है ये जिस पे बग़ैर किसी मसलक की क़ैद के हर इंसान जो भी हुसैन से इश्क करता है, आशिकाने हुसैन जो है वो इस सफ़र में चले जा रहे हैं मेहर व मोहब्बत और जोश और जज्बे के साथ। हमारी जो है वो एक बहन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे उनके जज्बात लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कौन साहिबा कहाँ से है? मैं यूपी बुलंदशहर, इंडिया यूपी बुलंदशहर से हूँ। माशाअल्लाह। आप इस सफ़र में आ रही हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपका सफ़र कबूल फरमाए। पैदल सफ़र कर रही हैं, क्या एहसास जज्बात हैं आपके?
जी, मैं आपसे बताऊं कि देखिए हम लोगों का इतना प्रॉब्लम्स है, कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पे हमारे साथ में जो ग्रुप में जो शुगर पेशेंट्स भी हैं, डायबिटीज़ है और मतलब लेग्स में प्रॉब्लम थी और वो वहाँ से ही सोचते हुए आ रहे थे पता नहीं हम चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, लेकिन मैंने खुद महसूस किया, एक्सपीरियंस है मेरा कि मैं कहूँ कि ज़मीन वाकई में कहते हैं ना कि जन्नत है। सच में आप जैसे ही हम लोगों ने बस एक सोचा, ना किसी के कोई दर्द ना कोई पेन, शुगर पेशेंट मतलब अपने आप चले जा रहे हैं कोई, और सबसे बड़ी बात कोई ऐसी टेंशन नहीं है कि हमारे साथ वाले कहाँ हैं, हम सब लोग यहाँ बिछड़ गए, पूरे ग्रुप से अलग हो गए, लेकिन पता नहीं क्योंकि ऐसा लगता है जब हम लोग चलते हैं कि हमारे साथ कोई ना कोई हमारे साथ चल रहा है, कोई हमें सपोर्ट मिल रही है। मतलब ऐसा ज़मीन का मैंने खुद एक्सपीरियंस है और मैं मतलब ये चल रही हूँ कि मैं अपना पूरे ग्रुप से अलग हो गई हूँ, कोई ना मेरे साथ में हस्बैंड ना मेरे बच्चे, कोई नहीं, लेकिन इस ज़मीन पे आके ऐसा लग रहा है कि सब हमारे साथ हैं, हमारे साथ साथ चले, कोई ना कोई चीज़ है इस ज़मीन से जो हमें मिल रही है। यकीनन जैसे फरमा रही हैं कि इसमें अगर इंसान अकेला हो जाए तो किसी साथी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वक्त के इमाम हमारे साथ जो है इस वक्त मौजूद होते हैं इस सफ़र के अंदर जो है वो। यकीनन आप जब आई हैं तो आप अपने जज्बात बयान कर रही हैं, बहुत सारे जो है वो मोमिनीन आप पीछे छोड़ के आई हैं, जब आप आ रही थी तो आपको अलविदा करने भी आएंगे और बहुत सारी दुआओं के बंडल दिए होंगे कि हमारे पहुँचाने, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जी जी, मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगी, देखिए बस कि अपनी लाइफ में मतलब एक ना एक दिन बाद 40 पे ज़रूर आए आप, मतलब चाहे आप कर्जा लेके, पैसा नहीं है आप कर्जा लेके किसी से लेके अपना गोल्ड अपना ज़मीन बेच कर, लेकिन एक बार 40 पे ज़रूर आए, क्योंकि मेरे मौला ने वादा किया है कि फ़कत मेरी चौखट पे कर्जा लेके आ जाओ, उनका वादा है वो आपको इससे ज़्यादा देंगे। और मेरा खुद का ये मानना है कि नहीं है, बस आप एक बार दिल से वहाँ बैठे बैठे इमाम हुसैन को वहाँ से सलाम कर दिए, देखिए मौला आपको ज़रूर, मौला अब्बास आपको बुलाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपका सफ़र बाबरकत फरमाए। यकीनन बहुत खूबसूरत अंदाज से जो है वो बयान कर रहे थे और यकीनन ये जोश जज्बात ये जो है वो मोमिनीन है जो इश्क और मोहब्बत में चले जा रहे हैं और जो है वो यकीनन लोग ये महसूस कर रहे हैं कि अगर हमें इस जगह पर, अगर हमारे पास जो है वो हाजत नहीं है, तौफीक नहीं है, हमारे पास इतनी इस्तात नहीं है, उसके बावजूद भी हम अगर आना चाह रहे हैं तो किस कदर जज्बात बयान कर रही थी कि हमें जो है वो अगर कर्जा लेकर भी आना पड़े तो इस सरजमीन पर ये मंजर देखने के लिए ज़रूर आना चाहिए, अबा अब्दुल्ला अल हुसैन की ज़ियारत को ज़रूर आना चाहिए, चाहे इंसान जो है वो अपने ग़िज़ा कम खाए लेकिन अबा अब्दुल्ला अल हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को ज़रूर आए। हमारे साथ बहुत सारे मोमिनीन भी तशरीफ़ फरमाए, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका नाम और कहाँ से? मेरा नाम गुलाम अली लाशरी है, हम डिस्ट्रिक्ट दादू तहसील जोही से हम आए हैं। माशाअल्लाह। आपका ये सफ़र पहला सफ़र है या पहले भी? तीसरी बार मौला करबला की मशी में मौला ने बुलाया है। माशाअल्लाह। तो यकीनन जो है वो आप सब लोग मिलकर पैदल सफ़र कर रहे हैं, इस उम्र में भी आपको जो है वो ये सफ़र जो है वो थकान महसूस नहीं हो रही, और इस जोश और जज्बे के बारे में क्या कहेंगे आप? मैं इतना ही कहूँगा कि माशाअल्लाह ये तो वो हैं जो ज़िंदगियाँ अता करते हैं। हम जब इधर आते हैं तो पहले तो उधर ही चलने में दिक्कत होती है कि कमज़ोरी, जब मच्छी शुरू करते हैं मैं तो मैं कहता हूँ कि मैं 17-18 साल का बच्चा जवान चल रहा हूँ माशाअल्लाह। यानी इस उम्र में भी जो है वो आप एक जज्बा, अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपने उन भाइयों के लिए जिनको पीछे छोड़ के हैं क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उससे ये दरख्वास्त करूँगा कि आपको मौला कायनात तौफीक देगा, मौला करबला वाले तौफीक देंगे, जिसने मच्छी ज़िंदगी में नहीं की, मैं यही कहूँगा उसने ज़िंदगी का सारा जो सुकून है वो एक पास साइड पर रख लिया। ज़िंदगी का जो सुकून है वो आपको इस सफ़र में नजर आएगा। यकीनन जो है वो किस कदर जज्बात हैं, किस कदर मोहब्बत है ज़ायरीन के अंदर कि जो है वो इस उम्र में भी जो है वो यकीनन जोश और जज्बे के साथ सफ़र कर रहे हैं, उन्हें कोई थकावट महसूस नहीं हो रही, उन्हें कोई परेशानी महसूस नहीं हो रही, बल्कि वो ये एक समंदर की तरह छलकते हुए करबला की जानिब जा रहे हैं। अगर कोई बीमारी भी है इस सफ़र में आके उसको शिफा मिल जाती है, अगर इंसान चलने से कासिर है इस सफ़र में आए अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सेहत अता करेगा, इस सफ़र में वो चलेंगे पैदल। और यकीनन हमारे साथ बहुत से मोमिनीन भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारे साथ जो है वो ज़ायरीन जो है वो चल रहे हैं, किस कदर महरो मोहब्बत के साथ, जोश के साथ, जज्बे के साथ जो है वो अपना इजहार कर रहे थे कि हमें जो है वो ये जो जोश और जज्बा मिलता है, ये हिम्मत और ताकत मिलती है, ये कहाँ से है? फरमाया कि जिसकी राह में निकल पड़े हैं, जिसकी राह में निकल पड़े हैं वो हिम्मत अता करते हैं। यकीनन जिनके लिए सफ़र कर रहे हैं ये वो हिम्मत अता करते हैं, ये जोश, ये जज्बा मिलता है और फिर हम जो है वो
इस सफ़र पर निकल पड़ते हैं और इस कदर मेहनत व मोहब्बत से जाते हैं, इस कदर जोश और जज्बे के साथ जाते हैं कि हमें इस सफ़र की थकावट का एहसास नहीं होता। हमें इस सफ़र पर चलते हुए कोई परेशानी महसूस नहीं होती। हमारे साथ जो है वो बहुत सारे ज़ायरीन मौजूद हैं। हम उनके जज्बात एहसासात को जो है वो आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करना चाहेंगे। हमारे साथ बहुत से ज़ायरीन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। कहाँ से बात? मैं सिंध जैकाबाद से बात कर रहा हूँ। माशाअल्लाह, आप जो है वो इस रूहानी सफ़र में शामिल हुए हैं और ये मंजर अपनी आंखों से देख रहे हैं। आप पहली दफ़ा ये देख रहे हैं या पहले? मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ और इमाम हुसैन का मुझ पर बहुत करम हो गया है कि सवार हुसैन में मुझे मशी में मुझे पैदल सफ़र करवाया। और ये रूहानी सफ़र मैं नहीं समझ सकता, ये फ़रिश्तों का है, ये इंसानों का नहीं है, ये फ़रिश्तों का है। क्योंकि हम खुद नहीं घूम रहे, हमें वो घुमा रहे हैं। हमें इतनी वसत ही नहीं होती कि हम घर से बाहर निकले और इस गर्मी में 51 सेंटीग्रेड गर्मी में हम पैदल जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा। यकीनन आप इस सफ़र कर रहे हैं और आप कह रहे हैं पहला सफ़र है। आपने वहाँ पाकिस्तान में अपनी मुल्क में बैठकर ये मंजर देखे होंगे, बार बार दिल में तड़प आई होगी काश मुझे भी मौका मिले। आज आपको मौका मिले, आप आ गए हैं, आपने अपनी आंखों से ये मंजर देखा है। वहाँ बैठकर जो देख रहे थे और यहाँ अपनी आंखों से देख रहे हैं, क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? मैं वहाँ पे जब भी सवार हुसैन जाते थे ना, मैं रो लेता था। मैं कहता था ए सवार हुसैन में इतना बदनसीब हूँ, मेरे लिए दुआ नहीं करते आप कि मैं भी सवार हुसैन बनूँ। जब मेरी सवार हुसैन पे मेरा नाम निकला था ना, जब मेरे सवार हुसैन सालार ने बोला भाई आपका नाम कंफर्म हो गया, वीज़ा लग गया ना, मैं खुदा की कसम इतना रोया था, इतने नवाफिल पड़े हुए थे ना, मैं क्या बताऊँ। अब मैं इस रोड पे हूँ ना जिसमें इमाम हुसैन और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हमारे साथ हैं, मैं उसमें रोड पे हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या हूँ। बस हम घूमते जा रहे हैं। आज तीसरा दिन है, हम सफ़र में हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह आपके जज्बात को कबूल फरमाए और अल्लाह आपके जो है वो सफ़र को जो है वो बाबरकत बनाए। आप में से कोई और जो है वो अपने इज़हार ख्याल करना चाहे तो बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपका सफ़र बेखतर हो इंशाल्लाह और इस तरह करबला की जानिब आप गामजन रहें। यकीनन जो है वो बहुत खूबसूरत सफ़र है और ये क्या जज्बात हैं कि बारहा हर साल हम जो है वो ये ख्वाहिश करते थे कि जो है हमारा नाम आ जाए। लेकिन वो कहता है जब मैंने ये देखा कि मौला ने इस साल मुझे बुला लिया है और इस सफ़र में शामिल कर लिया है तो यकीनन आंखों से आंसू छलक पड़े। और ये मेहर व मोहब्बत की निशानी होती है मौला कि मैं कब से तड़प रहा था और मेरा नाम ज़ायरीन इमाम हुसैन में नहीं आ पा रहा था। ए मौला इस दफ़ा आपने बुला लिया है तो करम किया है हम पे, आपने हमें इस साल करबला बुला लिया। और यकीनन ये मोहब्बत के आंसू थे, ये उन जज्बात के आंसू थे, वो जो दिल के अंदर एक गम और दर्द था और वो दिल के अंदर जो एक ख्वाहिश थी कि ए मौला हमें भी करबला बुलाइए। वो ख्वाहिश जब अमली जामा पहुँचाया जाता है उसका, तो यहाँ देख रहे हैं कि किस कदर जो है वो मेहर मोहब्बत के साथ जो है वो चाय पेश कर रहे हैं। यकीनन ज़ायरीन अबा अब्दुल्लाह हुसैन के लिए किस कदर जो है वो मेहर मोहब्बत के साथ और जो है वो उनकी खिदमत की जा रही है और यहाँ पर जो है वो उनके लिए चाय का एहतमाम किया गया है, उनके लिए जो है वो हर किस्म के खाने का एहतमाम किया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला जो है वो कबूल करे और इस रूहानी सफ़र के अंदर जो है वो इसी तरह से चलते हुए शामिल हो जाएँ। जी माशाल्लाह, आपको भी थकावट का एहसास हो रहा है तो आप ताज़ा दम हो लीजिए कि आपकी खिदमत के लिए यहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी सारी मसरूफियात को तर्क कर दिया है, कि जिन्होंने अपने घर बार को छोड़ दिया है, जिन्होंने अपने अहल खाना से रुखसत ले ली है कि ये जो हफ्ता 10 दिन है इसमें हम किसी और काम करने के लिए आमादा और तैयार नहीं हैं, बल्कि हम मौजूद होंगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए, अपने घर बार को छोड़ देने वालों की खिदमत के लिए। और जिस तरह बन पड़ा, जिस तरह हमारी बसात हुई, जिस तरह हमारी वुसअत हुई, हम उनकी खिदमत करेंगे। हम कुछ दे सके तो उन्हें कुछ गर्म और ठंडे मशरूबात के ज़रिए उनकी तवाज़ो करेंगे, कुछ उनको खिलाने पिलाने का इंतज़ाम करेंगे और अगर हो सका आराम के लिए जगह मुहैया करेंगे, उनके लिए नरमो गर्म बिस्तर बिछाएंगे और अगर हमारे लिए मुमकिन हुआ तो उनको पानी पिलाने का इंतज़ाम करेंगे, उनको ठंडा पानी पिलाएंगे भी। और इस गर्म हरारत भरे मौसम में, इस मौसम की तमाज़त और शिद्दत की वजह से उनके इस सफ़र को आसान बनाने के लिए हम उन पर पानी छिड़केंगे और कुछ ना हो सका तो हम उनके पाँव दबाकर उनकी थकावट दूर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहाँ से तशरीफ़ लाए? हम पाकिस्तान से। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको ये सफ़र करना? माशाल्लाह ज़बरदस्त। पहली बार आए? पहली बार आए माशाल्लाह। पहली बार ही आपको अल्लाह ताला ने सआदत बख्शे। उम्र क्या है आपकी? मेरी है 40।
अच्छा 14 40 अच्छा 40 साल आपकी उम्र है। तो ये सफ़र आपको नसीब हुआ है। आपने कितना इंतज़ार किया इस सफ़र के लिए? हमेशा मनाजिर देख रहे होंगे स्क्रीन पर। हो गया मुझे पासपोर्ट बनवाए हुए, मेरा एक पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, तो अब मौला ने माशाल्लाह तौफीक बख्शी है खुदा ने आपको, बार बार लाए इंशाल्लाह। जो मनाजिर आपके घर वाले और आपके अहले पाकिस्तान देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बस यही है कि आप दुआ करें हमारे लिए भी, अपने लिए भी, कि मौला उनको भी बुलाए। ठीक है, आप ये सफ़र जारी रखिए और बामारिफत ये सफ़र, बाबरकत ये सफ़र जारी रखिए। अल्लाह ताला आपको बार बार तौफीक दे और हम सबको ये तौफीक दे अपनी आँखों से हमारी ये तर्जमानी, हमारी ये पैगाम रसानी और हमारी ये आप तक पैगाम और मवाक़िब और इनके एहसासात और जज्बात पहुँचाने का जो सिलसिला है, यकीनन इसमें 100 में से आपको कह सकते हैं कि 99% नक्सो कोताही और कमी और कास्ती पाई जाती है। जब तक आप इन मनाजिर को अपनी आंखों से नहीं देख लेते, यहाँ पर खुद पहुंचकर इन खुद्दाम की आंखों में झांक नहीं लेते, इनके दिलों में मौजूद ये मौजज़न खिदमत का समंदर नहीं देख लेते, आप इन ज़ायरीन के कदमों की आहटों को अपने कानों से नहीं सुन लेते, जब तक आप इनके दिल की हरारत को, इनके सीनों में ये धड़कते दिल की बेचैनी को खुद नहीं करीब से देख लेते, आपको इस सफ़र मुक़द्दस अरबईन पर और इस मिलियन मार्च के हवाले से कुछ भी जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है वो उसका हक अदा करते हुए नजर नहीं आएगा, बल्कि अल्लाह ताला ले आए आपको एक बार करबला इस शाहराए मुक़द्दस पर। अगर ज़ियारत कर भी चुके हैं और मशी अरबईन आपने नहीं की, तब भी आपके लिए वही दुआ की जाएगी कि आपको अल्लाह एक बार मशी के लिए ले आए, आपको इस प्यादा रवी के लिए ले आए। पैदल चलना आपके लिए शायद एक मुश्किल काम हो, लेकिन जब आप इमाम हुसैन के नाम पर एक बार कदम उठाएंगे तो ये बोझल कदम आपका साथ देते नजर आएंगे, आपकी तमाम तर मुश्किलात आसान होती नजर आएंगी और आपको लगेगा कि पैदल चलना और मंजिल हुसैन होना ये दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन काम है, खूबसूरत तरीन एहसास है कि जिसमें इंसान अपने आराम और सुकून को और उससे बेपरवाह होकर उसको तर्क करता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जल्द अज जल्द मुलाकात की कोशिश करता है। समाअत फरमा रहे हैं कि हर तरफ से कुरान की आयात और बनाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम खूबसूरत अस्कार, और कहीं पर नोहे तो कहीं पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वो मुसीबतें कि जो इमाम अलैहिस्सलाम ने बर्दाश्त करते हुए अल्लाह का आखिरी सजदा किया, वो सजदा कि जिसे आज तक दुनिया अपना रहनुमा बनाए हुए है और उसी सजदे की बरकत से आज लाखों करोड़ों सजदे किए जा रहे हैं और जिस सजदे की बरकत से आज मस्जिदों में आज़ानें हो रही हैं, कि जिसकी बरकत से आज दीन ज़िंदा है, जिसकी मदद से आज इस्लाम ज़िंदा है, जिसकी मदद से आज तालीमाते रसूल खुदा ज़िंदा हैं, जिसकी मदद से कुरान आज महफूज है, वरना ये इंसानियत और ये इस्लाम अपनी शक्ल और अपनी शनाख्त तक खो चुके होते कि जिस जुल्म व बर्बरियत के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके अहल खाना के साथ वो 61 सन हिजरी की करबला में सलूक किया गया, यकीनन दुश्मन ये चाहता था कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके अज़्म व इस्तक़लाल को और उनकी हिम्मतों को, उनके जज्बों को, उनके हौसलों को, उनके पाए इस्तक़लाल को शिकस्त दे सके, लेकिन इमाम हुसैन तो कुजा इमाम का नाम जो एक बार ले ले वो भी इस कदर साबित कदम हो जाया करता है, इस कदर शुजा हो जाया करता है, जज़ाकुमुल्लाह, और इस कदर वो बाहिम्मत हो जाया करता है कि उसे इस दुनिया की कोई मुश्किल नज़र नहीं आती है, उसे इस दुनिया का कोई भी मसला नहीं लगता है, बल्कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से मदद तलब करते हुए, नाम हुसैन से इस्तिमदाद करते हुए और इससे फैज़ पाते हुए ख़ुद भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हकीकी पैरोकार बनता हुआ नज़र आता है और दुनिया और आखिरत में सुरखरू होना, कामयाब और कामरान होना उसका मुक़द्दर बन जाता है। बहुत बड़ी तादाद में ये ज़ुवार हमारे साथ कदम बा कदम सफ़र करते चले जा रहे हैं और मुसलसल उनकी
ज़ुबानों पर बस एक नाम है कि जो या खुदा का नाम है या खुदा के हुसैन का नाम है। यही वजह है कि जब आप अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के हत्ता अस्माए मुबारका में भी देखते हैं तो आपको मोहम्मद कई मिलेंगे, आपको मासूमीन में अली भी मिलेंगे, आपको हसन भी 2 मिलेंगे, लेकिन आपको हुसैन बस एक मिलेगा। यही वजह है कि हुसैन एक है, हुसैन की तहरीक एक है, हुसैन का मकाम एक है, हुसैन का रुतबा सिवा है, हुसैन की मंजिल सबसे बुलंद है, हुसैन का मर्तबा सबसे जुदा है। और यही वजह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चाहने वाले भी सबसे जुदा है, इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शाहराह मुक़द्दस भी सबसे जुदा है, इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हरम मुताहर की बात भी सबसे जुदा है, इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत का मकाम भी सबसे अलग है, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिन का भी अलग मकाम है। ला यौम कयौम कया अबा अब्दुल्लाह, जुल्म अली पर भी हुआ था, जुल्म सैयद कौनैन पर भी हुआ था, जुल्म हर इमाम पर हुआ था, लेकिन जो जुल्म इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर किया गया, जो आपके अहले खाना पर किया गया, जो आपके बच्चों पर किया गया, ए हुसैन वो किसी और पर नहीं किया गया। किसी और पर जुल्म होता है चश्मे फलक ने मंजर न देखा, किसी और शख्स को ज़मीन ने अपने ऊपर बुलंद नहीं किया कि जिसने इतना सब्र किया हो कि जितना हुसैन आपने सब्र किया। यकीनन आप भी हमारे साथ इस सफ़र में शरीक हैं, और इन तमाम अहिब्बा, इन तमाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उशाक को अपनी आंखों से देख रहे हैं। स्क्रीन पर इंशाअल्लाह थोड़ी देर में आपके सामने नंबर मौजूद होगा कि जिस पर कॉल के ज़रिए आप भी हमारे साथ शरीके सफ़र हो सकते हैं, शरीके गुफ्तगू हो सकते हैं। आपकी आवाज़ होगी और ये शाहराह मुक़द्दस होगी कि जहाँ पर आपकी ये आवाज़ बुलंद होगी, यकीनन पहुँच पा रही होगी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तलक। पहुँच तो इस कॉल के बगैर भी सकती है, लेकिन एक कदम सही अगर हम आपकी आवाज़ को इमाम तक ले जाने के लिए और इमाम अलैहिस्सलाम को सुनाने के लिए वसीला बन जाएं तो हमारे लिए कोई इससे बड़ी सआदत नहीं होगी। आप स्क्रीन पर नंबर मुलाहिज़ा कर सकते हैं, कॉल के ज़रिए शामिल गुफ्तगू हो सकते हैं। कोई हाजत बर नहीं आ रही, कोई दुआ कबूल नहीं हो पा रही, तो नाम लीजिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, अल्लाह ताला आपकी दुआ को मुस्तजाब फरमाएगा। कॉल कीजिए और अपने जज्बात, अपने एहसासात का इजहार भी कीजिए, इल्तिमास से दुआ भी कहिए। हम भी आपकी दुआओं को याद रखेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ुवार को भी हम इल्तिमास से दुआ कहेंगे ताकि वो आपको भी याद रखें, अपने सफ़र में आपको भी शरीके सवाब और अज्र करें, और आपको भी यहाँ पर दुआओं के ज़रिए अगले बरस बुला सकें। यकीनन आप कॉल के ज़रिए इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और हम आपकी कॉल को यहाँ पर शामिल प्रोग्राम करेंगे और दूसरे मोमिनीन तक आपकी आवाज़ को पहुँचाएँगे। सबसे बढ़कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद पढ़ने की सआदत का मौका फराहम करेंगे। दरूद हो उस हुसैन पर, दरूद हो उस सलाम कहने वालों पर कि जो इंतहाई मुसाफत पर बैठकर, कई हज़ार किलोमीटर बैठकर इमाम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को महसूस कर पा रहे हैं। तो यकीनन हम मौजूद हैं यहाँ पर। आपकी कॉल्स का सिलसिला शुरू होने को है। इंशाअल्लाह आप कॉल करके इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। जैसे कि नाज़रीन आप देख रहे हैं यकीनन कॉल्स का सिलसिला जारी हो सारी। हम अपने नाज़रीन से गुजारिश करेंगे कि जो है वो आप कॉल्स के ज़रिए हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उसे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक या हुसैन। जी कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? बेटा पाकिस्तान से बात कर रहे हैं। जी माशाल्लाह, क्या कहना चाहेंगी? जी आप सलाम हो, हम आपको टीवी में आपको देख रहे हैं, सारे प्रोग्राम हम आपके टीवी में देख रहे हैं। बेटा मौला को सलाम दे, नाम हम हुसैन सलाम दिल से और सबको सलाम देना बेटा। जी हम आपके लिए दुआगो हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपके इस गिरिए को और सलाम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आपके सलाम को बारगाह इमाम में पहुंचाए देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको भी आइंदा ये सफ़र नसीब करे और आप इस करबला के सफ़र में शामिल हो सकें। जी कॉल्स का सिलसिला जारी हो सारी है। हमारे साथ एक जो है वो और कॉलर मौजूद है, अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे।
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन। जी कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? भाई जी मैं नुशारो फिरोजिन से बात कर रही हूँ भाई। जी क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने मौला को सलाम पेश करना चाहती हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या इब्न रसूल अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या मौला हमें का बुला ले, जो जो तड़पते हैं मौला उनको बुला ले। हम टीवी पे देख रहे हैं मौला हमारी बड़े अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आपका सलाम भी कबूल हो इंशाअल्लाह। देख रहे टीवी पे इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह आपकी दुआ को कबूल फरमाए और आपको भी ये रूहानी सफ़र नसीब करे इंशाअल्लाह। आपको और आपके अहले खाना को ये करबला का रूहानी सफ़र नसीब हो इंशाअल्लाह। दुआओं का सिलसिला जारी व सारी है इंशाअल्लाह। हम वक्तन फ़वक्तन अपने नाज़रीन को अपने प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। कॉलर है हमारे साथ, उन्हें अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक या हुसैन। वाला असहाबिल हुसैन। सबसे पहले मेरी मौला की बारगाह में दुआ है कि वक्त इमाम का जल्द ज़हूर हो और मौला हमें करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। ये कारवान इमाम ज़माना को हो, पीछे हम सब गुनहगार हों और मौला हमें करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। सब हमारे घर वाले बाइन पे आ चुके हैं, हम बहनों को मौला करबला मौला की ज़ियारत नसीब फरमाए और मौला की बारगाह में दुआ है कि मौला पूरी हादी टीम को सलामत रखे। बहुत शुक्रिया, सलामत रहे इंशाअल्लाह। आपकी दुआओं को आपने प्रोग्राम में शामिल किए हुए हैं और आपकी जो है वो आवाज़ इस वक्त करबला के इस सफ़र में गूंज रही है। अल्लाह तबारक व तआला आपके सफ़र को जो है वो इंशाअल्लाह आइंदा साल आपको ये सफ़र नसीब करे और आप भी करबला मुअल्ला के सफ़र में शामिल हो सकें इंशाअल्लाह। दुआओं का सिलसिला जारी व सारी है। बहुत से मोमिनीन जो है वो कॉल्स के ज़रिए हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। हम जो है वो वक्तन फ़वक्तन जो है वो उनको अपने प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। जितने मोमिनीन दुआओं का कह रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और उनकी तमाम हवाइज शरइया को पूरा फरमाए। अगर बीमार हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें शिफाए कामिला वाजिला नसीब फरमाए। अगर बे औलाद हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें औलाद नरीना व सालिया अता फरमाए। जो बारहा जो है वो मैसेजेस के ज़रिए कॉल्स के ज़रिए हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं, हम जो है वो उनको अपने प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, उन्हें अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक या हुसैन। कौन साहब कहाँ से, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी हाँ, दुआओं का सिलसिला जारी सारी है, कॉल्स का सिलसिला जारी सारी है और जो है वो नाजरीन जो है वो हम अपने कॉलर्स को भी अपने प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और दुआओं का सिलसिला जारी व सारी है। यकीनन हम अपने नाजरीन को इस प्रोग्राम में शामिल करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक या हुसैन। मैं मौला को ताज़ियत और ना पुरसा पेश करना चाहती हूँ और दुआ मंगवाना चाहती हूँ कि मेरी मुश्किलें आसान हो जाए और मेरी बहन अपने घर चली जाए। इंशाअल्लाह जो है वो हम आपके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मुश्किलात को हल फरमाए। इंसान आपकी बहन की ज़िंदगी में जो मुश्किलात हैं अल्लाह उसे हल फरमाए और इंशाअल्लाह आपका जो है वो सफ़र आइंदा साल का सफ़र करबला का सफ़र हो इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हम तमाम मोमिनीन के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें करबला का सफ़र नसीब करें इंशाअल्लाह। एक हमारे साथ ज़ाहिरा मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और दोबारा कॉल्स के सिलसिले की तरफ आएँगे। चले आप एहसासात ज़रूर आपने शेयर कीजिएगा, नाज़रीन से क्या कहना चाहिए, कैसा लग रहा है शहर मुक़द्दस? मैं जहाँ तक जी सबसे पहले तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम करना चाहूँगा। जी बिस्मिल्लाह। जितने भी लोग दिल में मोहब्बत अहले बैत रखते हैं उनको एक बार कम से कम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आके हम वो चीज़ एहसास करते हैं जब जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा करबला से शाम तक
पैदल सफ़र करते हुए चली गई, बिना खाए बिना पिए, उस धूप में, उस गर्मी की शिद्दत में बच्चों को लेके, बच्चों के हमरा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के हमरा चली गई। लेकिन हमारे लिए मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये इंतज़ामात यहाँ पे रखे हुए हैं, जैसे पानी का एहसास भी नहीं होता है, हर एक चीज़ की अवेलेबिलिटी है, किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हम उस जनाब ज़ैनब सलाम अलैहा के लिए एक ये चीज़ कि हम उनकी मुसीबत में उनके साथ इस टाइम पे जो आए हुए हैं, बस वो हम याद करके उनको अपनी तरफ से तज़ियत करना चाहते हैं। और बस हम ये दुआ करते हैं कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम हमारी ज़ियारत को, हमारी इस मोहब्बत को कबूल करे, और आइंदा जितने भी हमारे साल, जितने भी आने वाले साल हमारी ज़िंदगी में बचे हो, हमें बस मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का शरफ़ कबूल करे। सब के लिए मैं दुआ करूँगी, जो नहीं आ पाते हैं उनके लिए, और जो यहाँ पे आए हुए हैं उनकी ज़ियारत को कबूल फरमाएं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अल्लाह ताला आपको बार बार ले आए, आपकी ज़ियारत को शर्फ़ कबूलियत बख्शे, और इंशाअल्लाह एक दिन आए कि आप अपने घर वालों समेत, अपने दोस्त अहबाब समेत इस सफ़र में शरीक हों, और वो लोग के जो दुआ मांगते हैं, तड़पते हैं, चाहते हैं, आ नहीं पाते, अल्लाह ताला उन तमाम को भी यहाँ शर्फ़ ज़ियारत बख्शे। कॉल्स का सिलसिला जारी व सारी है और मुसलसल आप मौजूद हैं, कॉल कर रहे हैं और इल्तिमास से दुआ कह रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी हो सारी। यकीनन नाज़रीन, कॉल्स के सिलसिले की तरफ दोबारा आते हैं। जो नाज़रीन हमें कॉल्स के ज़रिए हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन कर रहे थे, आपकी स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमें लाइव कॉल्स के ज़रिए प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी जो है वो दुआओं को हम अपने जो है वो प्रोग्राम में शामिल करेंगे, और आपके सलाम को भी अपने प्रोग्राम में शामिल करें। जो नाज़रीन बारहा हमें इल्तिमास दुआ का कह रहे हैं, जो है वो अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जो भी नाज़रीन बार बार कॉल्स के ज़रिए और मैसेज के ज़रिए अपना नाम लेकर इल्तिमास दुआ का कह रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जितने जो हवाइज शरिया रखते हैं, जो कॉल्स करके बारहा कह रहे हैं, और जो कॉल नहीं भी कर सके, हम उनके लिए भी दुआ गो हैं, जो ज़ुबान से कुछ कह सकें, कुछ नहीं कह सके, हम उनके लिए भी दुआ गो हैं। हज़ारों दिल में हाजतें रखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी तमाम हवाइज शरिया को पूरा फरमाए। बीमार हैं, शिफाए कामिला व आजिला नसीब फरमाए। अगर जो है वो तंगदस्त है, उनकी तंगदस्ती को दूर फरमाए। अगर वो मकरूज़ है, उनका कर्ज़ अता फरमाए। परेशान हाल हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी परेशानी को दूर फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। यकीनन जो है वो हमारे साथ कुछ ज़ायरीन हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। इस वक्त जो है वो कुछ ज़ायरीन हैं, हम उनके जज्बात को अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, झंडा आपके हाथ में है, तो पहचानने में आसानी है कि इंडिया से तशरीफ लाए, पहली बार है या पहले भी आ चुके हैं? जी, पहली दफ़ा आया हूँ इंशाअल्लाह। कैसा लग रहा है शाहराह जन्नत, शाहराह इमाम हुसैन? बेशक जन्नत है, बिल्कुल जैसा सुना था, पहली दफ़ा यहाँ आए और आज अपनी आंखों से भी देख लिया। बेशक बिल्कुल जन्नत है, और बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है कोई थकावट। हर मौके पे तमाम फैसिलिटीज़, तमाम सारी फैसिलिटीज़ हैं, और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है तमाम ज़ायरीन को। वो लोग, वो दोस्त, वो अहबाब नहीं आ पाए, जो उनके लिए क्या कहें? उन सब के लिए यही दुआ है, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास के रोज़े पर यही दुआ करते जा रहे हैं कि जो लोग इस साल नहीं आ सके हैं, इंशाअल्लाह अगले साल उनको अगले साल आने की तौफीक अता हो। तो नौजवान के एक सोचने का अंदाज़ थोड़ा मुख्तलिफ होता है, वो ज़्यादा इन मादियात में मुब्तला होता है, तो वो ज़्यादा हर चीज़ में फ़ायदा, नफ़ा, नुकसान देखता है। ये क्या सबक आप मोमिनीन तक पहुँचाना चाहेंगे? देखिए, उन्हीं के सदक़े से हमें सब कुछ मिलता है, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े से हमें सब कुछ मिलता है। ये देखिए, नफ़ा और नुकसान तो चलता ही रहता है, और ये ज़िंदगी का एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, नफ़ा भी होता है, नुकसान भी होता है। तो इंसान को ये मत देखना चाहिए कि नफ़ा है, नुकसान है। अरबईन पे आएँ, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के इस रोज़े की ज़ियारत करें, और वाकई जन्नत है, जैसे सुना था जन्नत है। अल्लाह कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका भी पहला ही सफ़र है? नहीं, मेरा दूसरी बार है इंशाअल्लाह। अच्छा, आप दूसरी बार आए, तो फ़र्क लग रहा है कोई पिछले साल जब आए थे और इस बार? इस बार माशाअल्लाह से अच्छी खासी तादाद है। अच्छा, तादाद का फ़र्क है, और आपका अपना कैसा फ़र्क है? पहली बार ज़ियारत की थी, कुछ मुख्तलिफ एहसासात होंगे, इस बार पहले से पता था क्या क्या होगा? जी, पहले से पता था, मैं पहली बार भी आ चुका हूँ, क्योंकि मैं इधर ही काम करता हूँ। अच्छा, ये बहुत ही एक शानदार तजुर्बा है कि यहाँ करीब होने के बावजूद बार बार कोशिश करते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को पैदल चल के कर सके। हमारे साथ कुछ और ज़ायरीन भी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
किस इलाके से तशरीफ लाए? खैरपुर मीरल सिंध। सिंध से एक बहुत बड़ी तादाद हमारे साथ मौजूद है और बार बार हमने उनसे गुफ्तगू करने का मौका, पहली बार आए, पहले भी आ चुके हैं? नहीं, सातवीं मरतबा है। 7वीं मरतबा, माशाअल्लाह, बार बार आते। क्या जज्बा है जो बार बार ला रहा है? वो जज्बा है जो मौला हुसैन की ज़ियारत का जज्बा है, बार बार आने की कोशिश करते हैं। मौला हुसैन की मेहरबानी है, हमें बुला रहा है। सुभान अल्लाह, फ़ख्र करते हैं कि मौका दिया है। क्या पैगाम देंगे आपके जो बेटे बेटियां पाकिस्तान में बैठे हैं, उनको आप इस सफ़र के बारे में क्या बताना चाहेंगे? हम सफ़र में आए, तजुर्बा करें, देखें, बड़ा अच्छा सफ़र है माशाअल्लाह, क्या मैं बताऊं। सही, यानी ऐसे सफ़र के बारे में ज़ुबानें गुंग हो जाती हैं और इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ ले जाता हुआ हमें ये सफ़र है। तो मुसलसल हमारे पास ज़ायरीन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और ज़ायरीन है कि जो जज्बात और एहसासात का समंदर अपने दिलों में लिए हैं और ठाठे मारता हुआ समंदर उनके दिलों में मौजज़न है, जो उन्हें बढ़ाए चले जा रहा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ, दिन रात की परवाह किए बगैर, मुश्किलात और आसानियों की परवाह किए बगैर वो बढ़े चले जा रहे हैं करबला की जानिब। मंजिल करबला है, क्या कहने उस सफ़र के कि जिसकी मंजिल करबला हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो मक़नातीसी ताकत है, वो क़ुव्वत है कि जो अपने चाहने वालों को अपनी तरफ खींच रहा है, वो कि जो दरमियान में आने वाली रुकावटों से वो उन्हें बेनियाज किए चले जा रहा है। यकीनन मोमिनीन हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़े हुए अपनी स्क्रीन पर मुलाज़ा फरमा रहे हैं तमाम तर मनाज़िर को कि खूबसूरत काफ़िले वक्तन फ़वक्तन इस शाहराह से गुजरते हुए हमें नज़र आते। उन्होंने स्पीकर्स वगैरह पर कुछ ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फ़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए कुछ बावाज़ बुलंद चलाया होता है कि जिसको सुनकर ये सफ़र और बामारिफत और रूहानी हो जाया करता है। कॉल्स का सिलसिला जारी हो सारी है, जैसे ही मोमिनीन हमसे जुड़ेंगे और कॉल वगैरह के ज़रिए हमसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे, हम उन्हें भी इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे और उससे हट के आपको ये मनाज़िर दिखाए जा रहे हैं कि जो यकीनन करबला के वाक़े की तरफ इशारा करते नज़र आते हैं। कहीं पर अलम बुलंद है जो अब्बास से बावफा के बुलंद हुए अलम की तरफ हमें तवज्जो दिलाते हैं कि वो अलम जो अब्बास के कटे हाथों ने उठाया था वो आज तक फिर झुका नहीं है। वो अलम के जो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुलंद करने के लिए अपने बाजू कटा दिए, लेकिन उस अलम को झुकने नहीं दिया। उस अलम मुबारक को आज तक अब्बास के चाहने वालों ने बुलंद रखा है, अपने हाथ कटवाए हैं, अपने जिस्म कटवाए हैं, टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन इस अलम को ऊंचा रखना है और आगे बढ़ना है। इस तरह के ये अलम हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के सपुर्द करना है। अपनी तमाम तर कोताहियों और सुस्तियों के बावजूद ये अलम ऐसा है कि जिसको हम झुकाने के लिए तैयार नहीं है, जिसको झुकते हुए देखना नहीं बर्दाश्त होता है हमसे। और यही वजह है कि जहाँ पर भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के और हज़रत अब्बास के इस अलम को झुकाने के लिए कोई भी यजीदी हमें नज़र आता है, हम उसके सामने सीसा पिलाई दीवार बन जाते हैं और अपनी तमाम तर हैसियत को बालाए ताक रखते हुए हम में से हर शख्स पहाड़ बनते हुए ये किरदार अदा करता है और अलम अब्बास को झुकने नहीं देता। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनको शामिल है, गुफ्तगू करेंगे। जी हमारे साथ मौजूद है कॉलर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक या हुसैन। जी आप हमें सुन पा रहे हैं? जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मदर जाफरी मंडी बावल। माशाअल्लाह, क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा मौला और बहन पर मुझे मौका दे, एक दफ़ा चुका हूँ, दूसरी दफ़ा मौका दे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हम आपके लिए दुआ गए हैं, अल्लाह तबारक व तआला आइंदा साल आपकी ज़िंदगी में करबला का सफ़र लिखिए और आप भी पैदल जो है वो करबला की जानिब सफ़र कर रहे हो इंशाअल्लाह ताला। हम तमाम जो है वो नाजरीन के लिए दुआ गए हैं जो वक्तन फ़वक्तन हमसे जो है वो रब्ता कर रहे हैं और बार बार जो है वो कॉल्स के ज़रिए और जो है वो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाईजान मेरा नाम लेकर आप दुआ कीजिएगा ना, मौला मुझे दोबारा बुलाएं। जी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हम जो है वो आपका नाम लेकर जाफरी साहब ने इल्तिमास से दुआ का अल्लाह तबारक व तआला इन्हें आइंदा साल करबला का ये सफ़र नसीब फरमाए इंशाअल्लाह तबारक व तआला।
हम जो है वो तमाम मोमिनीन के लिए जो इस वक्त करबला की ज़ियारत के शौक़ में तड़प रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन्हें ये सआदत नसीब करे और आइंदा साल इनका सफ़र करबला का सफ़र हो और इस रूहानी और पाकीज़ा सफ़र में जो है वो शामिल हो सकें। अल्लाह तबारक व तआला तमाम की हवाइज शरीय को पूरा फरमाए। एक जो है वो मोमिन ने दुआ का कहा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और वक्तन फ़वक्तन हम अपने नाज़रीन को अपने प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उन्हें प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक या हुसैन। वालेकुम सलाम। लब्बैक या हुसैन। मेरी बेटी ना 3 साल की है तो वो बोल नहीं सकती, उसके लिए भी दुआ करें और हमारे लिए भी दुआ करें, हम भी करबला आएं। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपकी उस बच्ची को सेहत अता फरमाए, उसे ज़ुबान अता फरमाए इंशाअल्लाह कि वो बोले और फिर ज़िक्र इमाम अलैहिस्सलाम भी करे इंशाअल्लाह। और आप तमाम जो है वो अहले खाना को अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आइंदा आपका सफ़र करबला का सफ़र हो इंशाअल्लाह। हम तमाम मोमिनीन के लिए जो है वो दुआगो हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हम अपने तमाम नाजरीन के लिए वक्तन फ़वक्तन जो है वो जिस तरह से कॉल्स का सिलसिला जारी व सारी है और इल्तमास दुआ कह रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला तमाम की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और तमाम नाजरीन के लिए दुआगो हैं जो कॉल्स के ज़रिए हमें हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन कर रहे हैं और दुआओं का कह रहे हैं, सलाम पेश कर रहे हैं बारगाह इमाम में। एक मोमिन ने दरख्वास्त किया कि हमारे लिए जो है चंद कदम पैदल चलें, हम उनके लिए पैदल चल रहे हैं और ये सफ़र आप तमाम ज़ायरीन की नियाबत में इंशाअल्लाह किया जा रहा है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उन्हें प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक या हुसैन। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? एक पाकिस्तानी बोल रहा हूँ सादिकाबाद से। माशाअल्लाह, क्या कहना चाहेंगे? बाकी क्या कहना है, यही कहना चाहेंगे कि हुसैन अकेले थे, आज देखे तो कितने प्रस्ताव हुसैन की तरफ बढ़ रहे हैं। एक लश्कर है, एक हजूम है, एक मुवद्दत है, एक इश्क है, दीवानगी है, क्या क्या कह सकता हूँ इस लश्कर के नाम। उन कदमों पे सलाम जो उठ के जा रहे हैं, उनकी कदमों की खाक पे सलाम जो उड़ रही है और मौला इनके सफ़र को कामयाब करे। मेरा बेटा भी इस सफ़र से जा रहा है, वो गए अरहमैन के साथ इस बाग में शरीक, मेरे घर वाले भी हैं। मैं यही दुआ करता हूँ कि मौला इतने ज़ायरीन तड़प रहे हैं, उनको भी इस्तिताअत दे, जिनकी आंखें तरस रही है उनको भी इस्तिताअत दे। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आपके इन कलिमात को कबूल फरमाए, आपके इस जोश जज्बे को सलामत रखे। जैसे आपका बेटा इस सफ़र भी है, इंशाअल्लाह आइंदा साल अल्लाह आपको भी ये सफ़र नसीब फरमाए और आपकी जो है वो दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया। वक्तन फ़वक्तन हम नाजरीन को अपने प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे जो कॉल्स के ज़रिए हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। इंशाअल्लाह हम जो है वो तमाम नाजरीन की नियाबत में इंशाअल्लाह ज़ियारत भी करते रहेंगे और उनके लिए चंद कदम पैदल भी चलेंगे जो 12 मोमिनीन इल्तमास दुआ का कह रहे हैं और हमारे लिए चंद कदम चलें। 12 मोमिनीन का इसरार है। हम अपने तमाम नाजरीन को ये बताना चाहते हैं, हम जो ये पैदल सफ़र कर रहे हैं और साथ में मनाज़र दिखा रहे हैं, इंशाअल्लाह आप नाजरीन की नियाबत में इंशाअल्लाह ये सफ़र ज़ियारत जारी व सारी है और साथ में कॉल्स का सिलसिला भी जारी है। हम कॉलर है, उन्हें अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर हम बात कर रहे हैं कराची से। जी माशाअल्लाह, क्या कहना चाहेंगे? हम बात कर रहे हैं अल्लाह का रोज़े पर पहले सबसे पहले सलाम करना चाहते हैं। जी जी ज़रूर, सलाम कीजिए। हमारे लिए अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, और हमारे लिए दुआ करें ताकि हम भी जी इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका सलाम भी बारगाह इमाम में पहुँचाए देते हैं और आपके लिए दुआगो हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआओं को कबूल फरमाए। जितने नाज़रीन सलाम का कह रहे हैं उनकी नियाबत में हम इंशाअल्लाह सलाम बारगाह इमाम में किए देते हैं। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। तमाम मोमिनीन की नियाबत में सलाम और जितने नाज़रीन दुआओं का कह रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। दुआओं का सिलसिला जारी है सारी। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन। भाई मैंने दुआ करनी है, मेरी अम्मी को बहुत सेहत दें और हमें भी आराम नसीब फरमाएं।
इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मेरी बहन ने दुआ का कहा है, अल्लाह तबारक व तआला इनकी वालदा को सेहत व सलामती अता फरमाए, तूल उम्र अता फरमाए और इंशाअल्लाह इनको भी करबला का ये सफ़र नसीब फरमाए और इनकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वक्तन फ़ौक्तन हम अपने नाज़रीन को अपने प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। जो है वो बहुत से मोमिनीन बार बार कॉल्स के ज़रिए इल्तिमास दुआ का कह रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके सफ़र को जो है वो अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए करबला का सफ़र लिखे और आइंदा साल वो भी करबला के सफ़र में शामिल हो सके। दुआओं का सिलसिला भी जारी है और हमारे साथ बहुत सारे नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं। हम एक ज़ाहिर हमारे साथ हैं, उनके जज्बात को अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कहाँ से तशरीफ़ लाए? ये हम पाकिस्तान पंजाब ज़िला जंग से हैं जी। ज़िला जंग से। आप पहली मशी कर रहे हैं, पहले भी ज़ियारत या मशी कर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 5वीं मशी कर रहा हूँ। 5वीं मशी कर रहे हैं, तो क्या एहसास है? अभी गर्म मौसम होने को है और इस तपता हुआ सूरज होगा, सफ़र जारी और सारी है। सबसे पहले तो मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस में अक़ीदतन सलाम पेश करता हूँ और मशकूर हूँ कि करीम करबला ने हमें ज़ियारत अरबईन का इज़्न दिया। और उसके बाद ये धूप और गर्मी तो कुछ भी नहीं है, चूँकि करबला में जो उस वक्त गर्मी थी, जो उस वक्त भूख प्यास थी, उससे तो बिल्कुल हज़ारों करोड़ों दर्जे कम है। हमें पीने को ठंडा पानी मिल रहा है, खाने को खाना मिल रहा है हर किस्म का, सोने को बिस्तर मिल रहा है। लेकिन कुर्बान जाऊँ उन शहदा पे जिन्होंने बग़ैर ऐसे इंतज़ामात के सफ़र किए, और इसके अलावा मैं तो कुछ नहीं कह सकता। जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, आ नहीं पा रहे, उनके बारे में क्या कहेंगे? बस करीम करबला उनको जल्द अज जल्द इज़्न ज़ियारत नसीब फरमाए। इसमें कुछ इराक़ी हुकूमत की भी नाअहली है और कुछ सलारों की भी है जिन्होंने फ़री वीज़ा का इंतज़ार किया, फ़री वीज़ा होएगा तो आएगा, और बाकी कुछ मक़सूम मुक़द्दर भी होता है। चलें, अल्लाह ताला हर चाहने वाले को यहाँ पर ले आए और आपका सफ़र भी बामारफत बनाए इंशाअल्लाह। सलामत रहिए। बहुत शुक्रिया। हम आपके एहसासात को आवाम तक पहुँचाने की कोशिश करते रहते हैं और चाहते ये हैं कि हर एक को मौका नसीब हो और इस सफ़र इश्क़ में शामिल हो। और यहाँ हमारे साथ कॉल्स के ज़रिए अगर कोई शरीक हुआ तो उसकी कॉल को भी आप तक पहुँचाएँगे और उनकी आवाज़ आप तक भी पहुँचाएँगे। उनके इल्तिमास दुआ कहने वाली हर आवाज़ को भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लब्बैक या हुसैन। वालेकुम अस्सलाम। लब्बैक या हुसैन। जी कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? जाहिदा बात कर रही हूँ, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी क्या कहना चाहेंगी? आपको भी पुरसा कबूल हो और जहादा मासूमीन की बारगाह में भी दुरूद व सलाम और पुरसा। प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है और हमें भी मौला इसके सफ़र इश्क़ में दम कदम होने की तौफीक अता फरमाए, हमारे शरई दिली मुकासद पूरे हों और आपके गुफ्तगू और जो है ख़िताम पे आप मसाइल बयान करते हैं वो भी हमें बहुत अच्छा लगता है। और रूहानी मंदिर का जो आप रवां तबसरा करते हैं उससे हमें और भी तक़वियत मिलती है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह आपके जज्बात को सलामत रखे। इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा और आपके लिए दुआ गो है अल्लाह तबारक व तआला। या लैतनी कुन्तु माअहुम फौजा फौजा नज़ीमा। और मेरी बहन बहुत बीमार है, आबिदा उनका नाम है, उनके लिए भी दुआ फरमा दीजिए। जी अल्लाह तबारक व तआला आपकी बहन को शिफाई कामला वाजिला नसीब फरमाए और आइंदा साल आपको भी करबला का ये सफ़र नसीब करे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हम तमाम मुमिनीन के लिए दुआ गो हैं अल्लाह तबारक व तआला उनकी जो है वो दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लब्बैक या हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं निदावतुल पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। जी क्या कहना चाहेंगी? जी मेरे अब्बू बीमार हैं, उनके लिए दुआ करें और हम सबको मौला ज़ियारत पर बुलाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपके वालिद को सेहत कामिला वाजिला नसीब फरमाए और आपके तमाम अहले खाना को इस बाबरकत सफ़र में ज़ियारत के सफ़र में शामिल करे और अल्लाह तबारक व तआला आपका सफ़र बेखतर करे और आइंदा साल आपको भी करबला का ये सफ़र नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। तमाम मोमिनीन के लिए दुआ गो हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी ये सआदत नसीब करे और आइंदा साल जो है वो भी करबला में शामिल हो सकें और ज़ियारत के सफ़र में शामिल हो सकें। यकीनन ये खूबसूरत और रूहानी मनाज़िर आपको दिखाई
دکھائی دے رہے ہیں آپ کی اسکرین پر کہ انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو یہ خوبصورت لمحات بھی دکھا رہے ہیں، اور وہ تمام ناظرین جو بار بار ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے وہ ہماری نیابت میں بھی چند قدم چلیں، یہ جتنا بھی ہم آپ کو پروگرام دکھا رہے ہیں یہ نشریات حاجی ٹی وی کے ذریعے آپ کو دکھائی دی جا رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ یہ مناظر بھی دکھا رہے ہیں، اور ہم چل رہے ہیں مسلسل، آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا چلنا ہمارے ناظرین کی نیابت میں ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری جو ہے وہ یہ زیارت اور ہمارا یہ سفر آپ ناظرین کی نیابت میں، اس کا ثواب انشاءاللہ آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ یہ جو ہم سفر کر رہے ہیں آپ خود کو ایسا محسوس کریں کہ آپ بھی کربلا کے اس سفر میں شامل ہیں، اور اس روحانی ماحول کو آپ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس سفر کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ان روحانی لمحات کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ ہم تمام ناظرین کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ بھی آئندہ سال اور یا زندگی میں کم از کم ایک بار انہیں یہ سعادت نصیب ہو کربلا کے اس سفر پر شامل ہوں، اور پیدل نجف سے کربلا کی جانب سفر کرتے رہیں۔ ماشاءاللہ مواقف کا جو سلسلہ ہے وہ جاری و ساری ہے، دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر ہمارے دائیں جانب خوبصورت مواقف کا سلسلہ ہے۔ ایک موقع ایسے ہے کہ جہاں پر وائی فائی فری موجود ہے کہ جس کے ذریعے آپ اپنے پیاروں سے بات کر سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہر کسی کے پاس سم پر انٹرنیٹ پیکج نہیں ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر والوں سے رابطہ رکھ سکے۔ پاکستان میں یا انڈیا میں اپنے چاہنے والے، اپنے رشتہ دار یا دیگر ممالک میں اگر کوئی موجود ہے تو ان کو وقتاً فوقتاً اپڈیٹ کر سکیں، اور یہاں کے حالات سے، یہاں کے مناظر ان تک پہنچانے کے لیے انہیں یقیناً انٹرنیٹ کی ضرورت رہتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک موقع بھی ایسا گزرا کہ جہاں پر فری انٹرنیٹ مہیا کیا جا رہا تھا، کہ جہاں پر مومنین اپنے جانے والوں سے، اپنے چاہنے والوں سے، اپنے رشتہ داروں، عزیز و اقارب سے رابطہ کر رہے تھے۔ اور ایک اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے ساتھ جو موجود ہوتے ہیں ہم انہی کی زبانی جاننے کی کوشش کریں گے، کیا محسوس کر پا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہاں سے تشریف لائے؟ راول پنڈی سے۔ جی، پہلا سفر ہے یا پہلے بھی آ چکے ہیں؟ نہیں، میں 9ویں دفعہ آ رہا ہوں، اربعین پہ تیسری دفعہ۔ ماشاءاللہ، سفر آپ فرق کر سکتے ہیں، عام دنوں میں زیارت کریں یا اربعین کی مشی میں، تو کیا فرق ہے؟ میں اب تیسری دفعہ مشی میں آ رہا ہوں، لیکن مزہ مشی میں ہی ہے۔ اچھا، یعنی مشی کو آپ اس سے پہلے تقریباً 5 دفعہ سفر کر چکا ہوں مشی سے پہلے۔ تو وہ یعنی لوگ کے جو اسکرین پر ابھی تک مناظر دیکھ رہے آ نہیں پائے، ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ وہ اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں، کم از کم ایک دفعہ وہ چکر لگے ہیں، وہ ان کی خواہش ہوگی کہ بار بار ہم مشی پہ ہی آئیں۔ جیسے آپ بھی 9ویں دفعہ آپ بتا رہے ہیں کہ تشریف لائے، یہ بتائیے گا کیا چیز ہے جو بار بار یہاں آنے کے لیے آپ کو تڑپاتی ہے اور آمادہ کرتی ہے؟ مین مظالم امام حسین، یعنی انہی مظالم کو یاد رکھتے ہوئے اور یہاں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سفر جو ہے وہ آپ کا بامعرفت بنائے، بار بار آپ تشریف لائیں۔ بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور یقیناً ان مومنین کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے کہ جو آپ کو اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں، خود یہاں پر آنے کے لیے ابھی تک اس توفیق کے منتظر ہیں کہ جو ابھی تک ان کے شامل حال نہیں ہوئی۔ ہمارے ساتھ ہر ملک کے اور ہر زبان کے زوار شریک سفر ہے اس شاہراہ میں۔ بہت ہی خوبصورت مواقف کا بھی سلسلہ جاری و ساری ہے، خدمت مسلسل کیے جا رہے ہیں، اور تھکنے کا نام و نشان نہ خدمت کرنے والوں کے ہاں نظر آتا ہے، اور نہ ہی زیارت کرنے والوں میں اور مشی کرنے والوں میں کوئی تھکاوٹ کا احساس ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر ایک بڑا موقف جو آرام کے لیے بظاہر حسینیہ کی شکل ترتیب دیا گیا ہے، کہ جہاں پر اگر کوئی رات بھر سفر کرتا رہا یا اگر تھوڑا سفر کرنے کے بعد وہ تازہ دم ہونے کے لیے آرام کرنا چاہتا ہے، استراحت کرنا چاہتا ہے، تو یقیناً اس کے لیے بہت ہی خوبصورت جگہ ہے کہ جہاں آرام دہ اور پرسکون ماحول میں وہ بغیر کسی مشقت اور پریشانی اور تکلیف کے استراحت کر سکتا ہے، تاکہ یہ بامعنی سفر، بامعرفت سفر، روحانی سفر بغیر کسی جسمانی مشقت کے وہ کر سکے، تاکہ زیادہ سے زیادہ توجہ اس کی امام حسین علیہ السلام کے وجود مبارک پر ہو، ان کی فکر مبارک پر ہو، ان کے اقدار اور جو ہدف امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا تھا، جو زیارت امام حسین علیہ السلام کا ہدف تھا، کہ جس کو امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا، اور جس کی وجہ سے اتنا اجر و ثواب اپنی روایات میں بتایا ہے، اس کو اپنے ذہنوں میں رکھے۔ یہ تمام تر ضروریات جو ہماری زندگی کی ہوتی ہیں، یہ 2 دن کی، 3 دن کی یا
اس سے بھی زائد وقت جو لگاتے ہیں مشی کے لیے. یہ چاہتے ہیں معصومین کہ تمام تر جسمانی ضروریات اور تمام تر جسمانی مشقتوں سے بے نیاز ہو کر اور ان سے ماورا ہو کر ہم صرف اور صرف اپنی توجہ مرکوز رکھیں امام حسین کی جانب, زیارت امام حسین کی جانب, مقصد امام حسین اور ہدف امام حسین علیہ السلام کی جانب, تاکہ یہ سفر صرف جسمانی جو آسائشیں ہیں, جو جسمانی غذا یہاں پر مواقب میں ہے, صرف اس کی وجہ سے آپ کے لیے یادگار نہ رہے, بلکہ اس سے بڑھ کے روحانی سفر کے طور پر آپ کی زندگی میں یادگار رہے. اور اگر آپ جا کر اپنے پیاروں کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے رشتہ داروں کو اس سفر کی رودات بتائیں تو وہ بھی تڑپیں کہ ہمیں بھی یہ مشی اربعین نصیب ہو اور ہم بھی جا کر خود یہ مشی کر سکے. وہ ثواب, وہ اجر کہ جو زائر حسین کا ہے, مشی کرنے والے کا ہے, یہ تڑپنے والے اور جن کے بدن پر اس وقت لرزہ طاری ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور یہ صرف تمنا لیے بیٹھے ہیں کہ کب اللہ کی جانب سے یہ اذن ملے, امام حسین علیہ السلام کی جانب سے یہ بلاوا آئے اور وہ بھی سر کے بل چل کے آ جائیں اور اس شاہراہ سے گزرتے ہوئے حرم مطہر امام حسین علیہ السلام میں داخل ہوں, حضرت عباس علیہ السلام کو سلام کریں اور اسیران شام کا پرسہ خود امام حسین اور حضرت عباس کی خدمت پہ پیش کریں. اور کربلا کے مظالم کو مسلسل یہ لوگ یاد کیے ہوئے ہیں اور کربلا کے اس واقعے کو اپنے وجود کے ذریعے, اپنی اس مشی کے ذریعے اور ان رسوم اور علامات کے ذریعے, ان شاعر حسینی کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج یہ مشی اربعین عالمی ہو چکی ہے, آج یہ اربعین عالمی ہو چکا ہے. جی ہمارے ساتھ موجود ہے ظاہر, ان کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے تشریف لائیں انکل؟ ضلع نواز شاہ سندھ سے. سندھ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کا پہلا سفر ہے, پہلے بھی آئے؟ پہلے سفر ہے, پہلا سفر ہے. پہلا سفر ہے. پہلا سفر بہت خاص ہوتا ہے, آپ نے چنا ہے امام حسین علیہ السلام کا سفر. کیا کہنا چاہیں گے اس سفر کے بارے میں؟ بس بڑا اچھا ہے. بہت انتظار, طویل انتظار کیا آپ نے زندگی بھر. ہمیشہ دیکھتے ہوں گے اسکرین پر کہ اللہ ہمیں بھی یہ توفیق دے. آپ کی دعا قبول ہوئی ہے. اللہ آپ اپنے پیاروں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ انہیں بھی آنا چاہیے. ان کو ہی آنا چاہیے. بہت شکریہ. اللہ آپ کا یہ سفر بے خطر فرمائے, زندگی آپ کی اتنا آپ کو موقع دے, پھر آئیں انشاءاللہ. جی ہمارے ساتھ اور زائرین بھی موجود ہیں, ان کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کس علاقے سے؟ پاکستان لیا سے, پنجاب سے, لیا سے. لیا سے تشریف لائے. پہلی بار آئے, پہلے بھی آئے؟ پانچویں بار آئے. اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے, خدا تعالیٰ کا پنجتن پاک صدقہ ہے, پانچویں بار. آپ اکیلے ہیں یا کوئی گھر؟ گروپ کے ساتھ ہے. اچھا پورے گروپ کے ساتھ ہے. 60 گروپ رہے ہیں. اچھا یہ پہلے بھی آپ مشی کر چکے ہوں گے یا زیارت کر چکے ہوں گے, اکیلے بھی سفر کرتے ہیں, گروپ میں بھی کرتے ہیں؟ گروپ میں کیا کوئی اضافی فوائد ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں؟ گروپ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان پیچھے میسج کرتا ہے اور جو دوست دیکھتے ہیں پیچھے پاکستان میں, ان کا دل کرتا ہے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ موقع دے اور جائیں ہم بھی پاکستان میں, اور پاکستان سے واپس جا کر پھر کربلا جائیں اور کربلا جا کر یہ. اچھا یعنی آپس میں رابطہ رہتا ہے. تو ان لوگوں کو, ان مومنین کو کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کے جاننے والے ہیں, چاہنے والے ہیں, آپ بھی چاہتے ہیں وہ اس سفر کا حصہ بنے, تو ان کو کیا پیغام دیں گے؟ میری طرف سے ان کو پیغام ہے اگر زندگی میں کچھ پانا ہے تو ایک بار کربلا ضرور آنا ہے. ضرور انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار لائے اور جو نہیں آ سکے ان کو بھی توفیق دے کہ یہاں آ سکے. بہت شکریہ. یہاں پر مواقب کا سلسلہ جاری و ساری ہے. عموماً زیادہ یہاں پر آپ کو مواقب جو نظر آتے ہیں وہ یہی گرم مشروبات اور چائے وغیرہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. عموماً عراقی چائے یہاں پر پیش کی جاتی ہے, اس لیے کہ جو مواقب کے خدمت گزار ہیں وہ اکثر ملک عراق سے تعلق رکھتے ہیں, اور یقیناً یہ وہ ملک ہے, یہ مقدس سرزمین ہے جسے امام حسین علیہ السلام نے چنا ہے اپنے سفر کے لیے. یقیناً اس کو تاریخی حوالے سے بہت تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اس سفر میں جو کوفہ کا کردار رہا, کوفہ کے جو باسیوں کا کردار رہا, خط لکھنے والے اور پھر مدد کے لیے بلا کر ان کی مدد نہ کرنے والوں کا کردار رہا. یقیناً یہ ایک کوئی آسانی سے رائے قائم کر دینا اس کے بارے میں نہایت زیادتی ہے. ہمیں اس کے حوالے سے جو عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ ہے وہی دینا چاہیے, اور تاریخی حقائق جو یقیناً پوشیدہ ہیں ان کو جاننے کی کوشش کرنا چاہیے کہ یقیناً اہل عراق کے حوالے سے بہت ہی مثبت چیزیں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جو یقیناً ان منفی چیزوں پر بھاری اور حاوی نظر آئیں گی. ہمیں تاریخ کا غیر جانبدارانہ مطالعہ بھی کرنا چاہیے اور صحیح رائے جو ہے
सही सबक और सही लेसन्स के साथ उसको पढ़ना चाहिए। हमारे साथ बहुत से ज़ुवार यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं कि जो मुसलसल सफ़र भी कर रहे हैं, आराम करने वाले भी हैं, और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी एक मुश्किल होती है, हमारे साथ मौजूद हैं, तायद करेंगे। जगह जगह पर हम एक ऐसे मनाजिर देख रहे हैं कि हमें जहाँ वाशरूम की सहूलत बासानी मुहैया की गई है नज़र आ रही है। यानी आम तौर पर हम देखते हैं कि किसी जगह कोई ज़्यादा तादाद में लोग इकट्ठे हो जाए तो ये एक बहुत बड़ा मसला होता है, नहाने की जगह नहीं होती, वाशरूम का सिलसिला नहीं होता, या बहुत यानी सफाई सुथराई का एक निज़ाम नज़र नहीं आता। लेकिन यहाँ माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत मुनज़्ज़म माहौल है और इस किस्म की भी जो मुश्किलात है वो हल नज़र आती हैं। जी हाँ, बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान कर रहे थे। यकीनन ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। हमारे नाज़रीन वक्तन फ़वक्तन जो है वो हम आपको ये मनाजिर भी दिखाते रहते हैं। आइए मिलकर याद करते हैं उस हुसैन इब्न अली के मसाइब को, जिस हुसैन इब्न अली के लिए हम सफ़र कर रहे हैं, करबला की जानिब जा रहे हैं। अपने कदमों से चलकर पाँव में थकन आ गई है, पाँव में वरम आ गए हैं, लेकिन हमें थकावट महसूस नहीं हो रही। हम इमाम सज्जाद के उस मरहले को याद कर रहे हैं कि मौला सज्जाद ने जो करबला से कूफा से लेकर शाम तक इस सफ़र को किया। अल्लाह तबारक व तआला हमें ये सआदत नसीब की है, हम भी इस राह में चलकर हम भी इस राह में सफ़र कर सकें। यकीनन हम इमाम के मसाइब को याद करते हुए लम्हा बलम्हा करबला की जानिब जा रहे हैं। आइए मिलकर पुरसा पेश करते हैं उस हुसैन इब्न अली को कि जब 11 मुहर्रमुल हराम लाशों पर कफन न थे, बेगौरो कफन लाशें पड़े हुए थे, जिन्हें दफन करने वाला कोई न था, और बहन ज़ैनब रोकर ये कह रही थी, ऐ भैया दिल तो मेरा भी चाहता था मैं तेरा चेहलोम करती, लेकिन मुसलमान रस्सियां लेके आ गए, बीबियों को कैद करना शुरू किया और ऐसी सवारियां लाई गईं जिन पर महमल मौजूद न थे। हाँ, उस वक्त बीबियों को कैद करके ले जाया जा रहा था और उन्हीं लाशों के दरमियान से बीबियों को गुजारा गया, जहां उनके अजीज़ो अकारिब की लाशें पड़ी हुई थीं। इन लाशों के बीच से जब महमलों को गुजारा गया, बीबियों ने अपने आप को अपने वरसा की कब्रों पर और उनके लाशों पर गिराया। क्या मंजर था! आई है जब अपने भाई की लाश पे तो पहचान नहीं सकी, क्योंकि सर तन से जुदा था, लाशे पे सर मौजूद न था। पुकार के बीबी ज़ैनब ने कहा, ऐ मेरे भैया हुसैन, क्या ये तू है? मुझे नजर नहीं आ रहा। ऐ मेरे भैया जरा मुझे पुकार, अभी तक तेरे इम्तिहान की मंजिल थी, अब ज़ैनब कुबरा के इम्तिहान की मंजिल देख। और हाँ, तेरी फौज भी थी, आज ज़ैनब कुबरा के इम्तिहान की मंजिल का आगाज हो गया। और फिर ये काफिला चला है कूफा की जाने बढ़ता हुआ, और जब ये काफिला कूफा की तरफ रवाना हुआ, हाँ अज़ादारों क्या मंजर देखा। बीबियों को कैद करके जब कूफा के बाजार से गुजारा जा रहा था, सारे तमाशाई तमाशा देख रहे थे। एक मंजिल की जानिब से गुजरे, एक मकान की छत पर औरत बैठी थी। औरत ने जब ये मंजर देखा, ये कैदी है, उम्मत मुस्तफ़ा में से थी, आई कैदियों के करीब और आकर बीबी ज़ैनब से कहा, ए कैदिन, तुझ पे मेरा सलाम हो, ये तेरी इस 4 साल की बच्ची को मैं पानी पिलाऊंगी और मैं इसको खाना खिलाऊंगी, मेरी चंद दुआएं हैं, अगर तू उस पर आमीन कहती है तो मैं तेरी बच्ची को पानी पिलाऊंगी। बीबी ज़ैनब ने फरमाया कि पहले अपनी दुआएं मंगवा ले और फिर इस बच्ची को पानी पिला लेना। हाँ, खुदा की कसम, आई है वो पानी का जाम भर के और कहा, ऐ कैदिन, मेरी पहली दुआ ये है, तुम आमीन कहना कि जैसे तू कैद हुई ऐसे मैं कैद न हूँ। बीबी ज़ैनब ने उसके लिए दुआ की, फिर कहा, मेरी दूसरी दुआ ये है, जैसे तेरे बच्चे यतीम हुए ऐसे मेरे बच्चे यतीम न हो। और बीबी ज़ैनब ने दुआ की, फिर तीसरी दुआ करके कहती है, ऐ कैदिन, दुआ कर अल्लाह मुझे मदीने ले जाए, अरसा हुआ मैं मदीने नहीं गई, अल्लाह मुझे मदीने ले जाए। अब बीबी ज़ैनब ने दुआ नहीं की बल्कि पूछा, ऐ बीबी, तू मदीने जाके क्या करेगी? और ओके वो कहती है, मदीने में मेरी आका आज़ादी रहती है, मैं उसके पास कुरान पढ़ा करती थी,
عرصہ ہوا میں نے ان کی زیارت نہیں کی. اس وقت بی بی زینب نے کہا اے بی بی اگر اس بازار میں آ جائے کہ اپنی آقا زادی کو پہچان لوگی. رو کے کہا کجا میری آقا زادی, کجا یہ شرابیوں کا دربار, میری بی بی اس دربار میں اس بازار میں نہیں آ سکتی. اس وقت پکار کے کہا کیا تم اپنی آقا زادی کا نام بتا سکتی ہو؟ اور کہا یہ بازار اس لائق نہیں ہے کہ میں اپنی بی بی کا نام بتاؤں. ماتھے سے بالوں کو ہٹایا اور زینب کبریٰ نے پکار کے کہا ام حبیبہ آ مجھے پہچان, تیری مدینے والی آقا زادی زینب, میرا اکبر مارا گیا اور میرا عباس مارا گیا. اجرکم علی اللہ جزاکم ربکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. لبیک یا حسین.